Good evening. Good evening and warm welcome all of you. Sir, our chamber theme is Let's Unite for the Growth. The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries shall strive to be a world-class chamber of commerce. Our chamber 6 visions, out of which last vision, that is upgrade technical knowledge in trade and industries through various seminars, conferences and workshops. Sir, in an organization, Chief Financial Officer, Business Management and Corporate Treasurer are usually main individuals responsible for overall cash management strategy, stability, other cash related responsibilities. However, many organizations may outsource part or all of their cash management responsibilities to some service providers. The statement of cash flow act as a bridge between the income statement and balance sheet by showing cash move in or out in the business. Company with the multiplicity cash flow and outflow must be properly managed to maintain adequate business stability. Sir, I remember one famous quote. Jack Welch says that I had to run a company on a 3 measures. Those would be customer satisfactory, employee satisfaction and cash flows. अर्थात जो मारा 3 मापदंडों पर कंपनी चलावी હોય તો ગ્રાહકને સંતોષ, કર્મચારીને સંતોષ અને રોકડ પ્રવાહ ઉપર ધ્યાન રાખવું. Now with this quote, may I request to the immediate past president of SGCCI, Ramesh Vagasya sir, please to give a welcome address. Namaste. The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry એ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના ભારતના પ્લેટફોર્મનું એક એવું પાસું છે કે જે આખા ભારતમાં લગભગ સૌથી વધારે ખૂબ સારી અને લોકોપયોગી બિઝનેસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીને ઉપયોગી પ્રવૃત્તિઓ વિવિધ ફલક ઉપર જુદી જુદી રીતે કરી રહી છે અને એ કરવાનો આશય અને એના પરિણામો નાનામાં નાના એકે એક એન્ટરપ્રેનર્સ સુધી પહોંચે અને એનો લાભ લઈને એ વ્યક્તિ વિકસે એવો ઉમદા આશય ચેમ્બર ધરાવે છે. અને એ ઉમદા આશયના કારણે જ્યાં આપણે બેઠા છીએ ત્યાં 1,19,000 સ્ક્વેર મીટર લેન્ડ જે લગભગ ભારતમાં કોઈ ચેમ્બર પાસે નથી એવી એ લેન્ડ ઉપર 1,16,000 સ્ક્વેર ફીટ પિલરલેસ ડોમ એક્ઝિબિશન માટે અને સાથે એટેચ આવા સેમિનાર હોલ્સનું નિર્માણ કર્યું છે. એવી એ ચેમ્બર કે જેના લીડરોએ, પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટોએ અને સિનિયર મેમ્બર્સે બધાએ સાથે મળી આટલું સરસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કર્યું છે અને એનો આશય જે આજે ઉમદા આશય છે એ જ હંમેશા કાયમ માટે રહ્યો છે. બિઝનેસને ઇન્ડસ્ટ્રીને ગ્રો કરવા માટે નરેન્દ્રભાઈ અને આગળના કોઈ પણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તમે જોશો, મનમોહન સિંહ હોય, કોઈ પણ હોય, તો સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે ઇકોનોમીને ડેવલપ કરવા માટે. અને નાઉઅડેઝ યુ કેન બી વિટનેસ ધેટ only that country dominates anyone else who have the economic power. And to make the India an economic powerhouse, we all have to collectively make efforts. And so as we can be able not to fear from any country, any content or any power from the world, and we can conquer on our sovereignty. અને એટલા માટે ભારતને આર્થિક રીતે મજબૂત બનાવવું એટલું જ જરૂરી છે અને એ બનવા માટે ભારતનો એક એક બિઝનેસમેન મજબૂત બને એ માટે આયોજિત થયેલા આ આજના સરસ મજાના ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ અને કેશ ફ્લો મેનેજમેન્ટના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આજના આપણા સ્પીકર પ્રોમિનન્ટ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઋષભ બોત્રા, અમારા ચેમ્બરના ગ્રુપ ચેરમેન, સતત કોઈને કોઈ દરેક મિટિંગમાં પોતાના ઇનપુટ્સ આપીને ચેમ્બરમાં કેમ સારું કામ થાય એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ ભાઈ શ્રી શૈલેષભાઈ દેસાઈ, એકાઉન્ટ્સ કમિટી અને જુદી જુદી કમિટીના માધ્યમથી એક સામાન્ય સૈનિકની માફક રાત દિવસ કામ કરી
અને ઓછું બોલવાનું, વધારે કામ કરવાનું, અને કોઈ પણ પ્રકારના પદ, હોદ્દા કે સીટ ઉપર બેસવાનો ક્યારેય આગ્રહ ન રાખતા એવા મારા વહાલા દીપેશભાઈ શાકવાલા, આપ સૌનું હૃદયના અમલતાથી સ્વાગત કરું છું. અને આપ સૌ આ સેમિનારમાં પધારી અને કંઈક થોડુંક શીખવાની ભાવના સાથે પધાર્યા છો ત્યારે આપ સૌનું પણ અંતઃકરણથી સ્વાગત કરું છું. આપ સૌનું અભિવાદન કરું છું. ચેમ્બર જે જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં જુદી જુદી બાબત ઉપર બિઝનેસને, ઇન્ડસ્ટ્રીના દરેક સભ્યને કંઈક ને કંઈક આપવા માટે પ્રયત્નશીલ છે, ત્યારે આજનો વિષય ખરેખર ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગમે તેવા મોટા પૈસાવાળા સમૃદ્ધ લોકો હોય પણ એમની પાસે ક્યારેક એવા સંજોગો આવે કે હાથ પર રકમ ના હોય. વોટ આઈ હેવ વિટનેસ્ડ, રિષભભાઈ, કે when we were passing through the COVID-19, ત્યારે ખૂબ મોટા બિલ્ડર હોય કે ખૂબ મોટા ઉદ્યોગપતિ હોય એને હોસ્પિટલાઇઝ થવા માટે એને 2-5-10 લાખ રૂપિયાની જ્યારે જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી, કિશનભાઈ, they don't have that much amount in cash in their house on their hand, and that was the critical situation what they have been passed. એટલે ગમે એટલા સમૃદ્ધ હોઈએ, સુખી હોઈએ, એ જેટલું જરૂરી છે એની સાથે એનો કેશ ફ્લો, લિક્વિડિટી અને ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ આ મેનેજ કરવું એટલું જ અગત્યનું છે, જેથી કરીને આપણે જેને દેશી ભાષામાં વ્યવહાર કહીએ છીએ, જેનો વ્યવહાર ક્યારેક ખરાબ ન થાય. એનો અર્થ એ કે લોકોને જ્યારે પૈસા આપવાના હોય ને આપણે આપી ન શકીએ અને આપણી ઇમેજ, ક્રેડિટ, ગુડવિલ જે ખરાબ થાય એ ન થાય. Therefore we have to maintain the liquidity. Therefore we have to manage the cash flow in our business and in our family. અને એટલા માટે આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈને આપણે વિકાસનું જે બજેટિંગ બનાવતા હોઈએ, પ્લાનિંગ બનાવતા હોઈએ કે પ્રોજેક્શન્સ કરતા હોઈએ ત્યારે, અને ફેમિલીની બાબતોને પણ ધ્યાનમાં રાખીને મા બાળકોનો અભ્યાસ પણ આવી જાય, આકસ્મિક બીમારી પણ આવી જાય અને આકસ્મિક કોઈ કેલેમિટીઝ પણ આવી જાય તો પણ એ મેનેજ થઈ શકે, એને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણી પોતાની આવક શું આજે છે ને આવનારા સમયમાં શું થશે એને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલો કેશ ફ્લો આપણે હાથ પર રાખવો જોઈએ, કેવી રીતે રાખવો, અને તેમ છતાં પણ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ લોસ ન કરીએ. આપણે એની ઉપર આવક મેળવી અને આવક મેળવેલી હોય અને આઇડલ પડી રહેવાના કારણે જે અલ્ટરનેટ ઓપ્શનલ ઇન્કમ પણ ગુમાવીએ નહીં. એવા આશય સાથે એવી ટેકનિક કેવી રીતે આપણે અજમાવી શકીએ જેથી કરીને બંને બાબત મેનેજ થાય અને આપણી આવક પણ ખોટી આઇડલ ન પડી રહે અને જરૂરિયાતના સમયમાં આપણને સ્કેરસિટી પણ ફીલ ન થાય. એ માટે આયોજિત થયેલા આજના આ માસ્ટર કેશ ફ્લો એન્ડ ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ સેશનમાં આપ સૌનું ફરી સ્વાગત કરી વિરમું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, sir, for your kind words. Now may I request to the immediate past president of SGCCI, Ramesh Wagasa, sir, and other dignitaries on the dais, please felicitate today's speaker, Sir Rishabh Bothra, with flower and memento. Thank you, sir. Sir, I remember another famous quote. Peter Drucker says that entrepreneurs believes that profit is what matter most in a new entrepreneurs, but profit is secondary, cash flow matter is most. અર્થાત ઉદ્યોગ સાહસિકો માને છે કે નવા એન્ટરપ્રેનરમાં નફો સૌથી વધુ મહત્વનું છે, પરંતુ નફો કોણ છે અને રોકડ પ્રવાહ એ સૌથી મહત્વનું છે. Now, may I request to the group chairman of SGCCI, Shailesh Desai, please to say about the program. The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries is organizing a program, particularly on workshop on master cash flow and financial management to empower business owners, professionals and finance enthusiasts
with essential financial strategies. મિત્રો આ જે બિઝનેસ આ બેઠેલા છે એમાંથી બિઝનેસમેન કેટલા છે અને પ્રોફેશનલ કેટલા? બિઝનેસમેન કેટલા છે? ઓકે. અને પ્રોફેશનલ્સ કેટલા છે? ઓકે. ઓલમોસ્ટ એટલે સંલગ્ન બધા બિઝનેસમેન અને પ્રોફેશનલ્સ છે જે એકાઉન્ટિંગ માટેની આજે કંઈક નવું તમને જાણવાની ઉત્કંઠાથી આવ્યા છે. બેઝિક એ છે કે બિઝનેસ આજે આપણે બધા જ કરીએ છીએ, પણ કોઈ 10 કરોડ કરે, કોઈ 15 કરોડ કરે, કોઈ 20 કરોડ કરે, કોઈ 100 કરોડ કરતું હોય. પણ બિઝનેસ ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે કે એ કેશ આપણી પાસે નહીં આવે ત્યાં સુધી એ બિઝનેસ કહેવાતો નથી. અને એ જે બિઝનેસ તમે આજે ઘણા બધા બિઝનેસમેનોને એક મોટો પ્રશ્ન એ આવે છે કે જે કેશ જે છે તે કેશ બધા આપણા ક્યાં તો સ્ટોક્સમાં પડેલા હોય અથવા માર્કેટમાં ઉઘરાણીમાં પડેલા હોય. આ કેવી રીતે મેનેજમેન્ટ કરવું એને માટેનો આજનો પ્રોગ્રામ છે. અને એ તમારે આજે આપણા જે આમાંથી તમને શું મળવાનું છે એ તમને કહું કે ઇફેક્ટિવ ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેશ ફ્લો optimization are crucial for business sustainability and growth. These workshops will provide you in-depth insight into the managing finance, efficiency, ensuring profitability, and making informed business decision. And as you rightly see that our speaker CA Rishabhbhai Bothra is a founder of Single Key Advisory Private Limited. With his vast experience in financial consulting, Rishabhbhai will share practical approaches to managing cash flow, improving financial efficiency, and maximizing business profitability. And the highlight of the event will be understanding the cash flow cycle and financial planning, effective strategies for managing working capital, enhancing profitability through financial management, practical insight for business owners and finance professionals. See મિત્રો, અત્યારે એક તમે જોયું હશે કે જસ્ટ નાઉ બિફોર 15 days બેક આપણા ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે બહુ બધા બિઝનેસમેનોને, નાના એન્ટરપ્રેન્યોર્સ કે મોટા બિગ એન્ટરપ્રાઇઝને એ લોકોને નોટિસ મોકલાવી છે. અને નોટિસની અંદર એવી કીધું કે તમે તમારું બેલેન્સ શીટ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ તો બધું બરાબર છે, પણ તમે તમારો કેશ ફ્લો અમને બતાવો. અને કેશ ફ્લોની અંદર તમે શામાં ખર્ચ કર્યો છે, અને ખર્ચ એટલે કેવો કે તમે હેર કટિંગ કરાયો તો તેનો પણ ખર્ચો બતાવો. આ રીતની એક્સપ્લેનેશન ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એ માંગ્યું છે અત્યારે. અને અત્યારે તમે ઘણી બધી જગ્યાએ એ વિડીયો પણ તમે જોયો હશે. વોટ એક્ઝેક્ટલી ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ કે તમારો કેશ ફ્લો શું છે. ગવર્મેન્ટને એ ઇન્ટરેસ્ટ નથી કે તમે હેર કટમાં કેટલા વાપરા, પણ તમે તમારી રીતે લિટરસી એ રાખો કે આપણે ત્યાં કેશ ફ્લો જે આવે છે, જે ઘરમાં આવે છે, તેનો શું ખર્ચો થાય છે, જે ઓફિશિયલ કરવાનો છે. અને એ ઓફિશિયલ કેશ ફ્લો લાવવા માટેનો ગવર્મેન્ટનો પ્રયાસ છે. એ લોકોને કોઈ બીજી એવી કોઈ એ નથી કે ભાઈ તમે વાળ કપાવવામાં 50 રૂપિયા વાપરા કે 5000 વાપરા, પણ કેશ ફ્લોનો આખો ઇનપુટ ઇન્ટેક કેવી રીતે લાવવો એ લિટરસી લાવવા માટે પણ કદાચ આ મુહિમ હોઈ શકે એવું મારું માનવું છે. તો લેટ્સ હેવ અ બિગ એપ્લોઝ ટુ CA Rishabhbhai for his presence here. And now I will request Rishabhbhai, now all your okay. So we will come to that point. Dipeshbhai will take over. Thank you. Thank you, sir, for your kind words regarding today's subject. Good evening. Good evening. It is my honor to introduce today's our speaker, CA Rishabh Bothra. He is a qualified CA, CS Diploma IFRC, as and certified concurrent auditor. He is not just chartered accountant, he is a financial architect with 15 years of global experience in accounting and bookkeeping. His journey, enriched by role at KPMG and Ernst & Young, equipped him with profound understanding of international financial landscape, specializing in tax planning and virtual CFO service and internal audit. With this introduction, let's have a round of applause for CA Rishabh Bothra, sir.
Sir, the floor is yours, sir. Thank you, Ramesh Bhai. Thank you, Shailesh Bhai. Thank you, Dipesh Bhai, for such a wonderful introduction. And thank you, SGCCI, for taking this initiative to this level so that people and business owners can be financial literate and use financial strategies to improve their business cash flows and their businesses. Okay. मैं इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी इज फाइन? हिंदी इज बेटर. Gujarati, I am not very much good at Gujarati. I am very good at Hindi and English. Hindi is fine? Okay, thank you. Before starting this presentation, do I have 1 hour? 1 घंटा है मेरे पास? Thank you. Yes, if you want. So, before starting this presentation, I would like to understand what is my audience so that मैं उन लोगों से better connect कर पाऊँ. So, किन लोगों के पास बुक्स आपके बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट्स हैं? फुल टाइम अकाउंटेंट किसके पास है? इन हाउस. आपके पास फुल टाइम अकाउंटेंट्स हैं. किसी के पास पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स हैं? पार्ट टाइम अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड. कौन सा बिजनेस ओनर है जो अकाउंटिंग खुद करता है? ओके, अकाउंटिंग खुद कोई करता नहीं. अच्छा, मतलब बाकी जो है वो अकाउंटिंग करते ही नहीं है, ऐसा है? दे डू बिजनेस, दे डोंट डू अकाउंटिंग. ओके. एंड आप लोगों में से फाइनेंशियल लिटरेसी का, फाइनेंशियल वर्ल्ड, ये सब फाइनेंशियल जो जार्गन्स होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग किस किस को है? लाइक वर्किंग कैपिटल, कैश कन्वर्जन साइकिल्स, करंट रेशियो, क्विक रेशियोज, थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं इस टाइप के टर्मिनोलॉजीज? ओके, ज़्यादा लोग नहीं हैं. फाइन, ठीक है. तो दैट इज सो अंडरस्टैंड करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? मेरे से क्यों आप थोड़ा, व्हाई मी? आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ अराउंड 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैं फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ. आई वर्क with many big corporates like Birla Cement, Hindalco, JSW, फिर Make My Trip, BMW, Arvind Mills. मैं इस टाइप के कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया हुआ है मैंने, और उनके फाइनेंशियल्स को अंडरस्टैंड करके उनके लिए स्ट्रेटजीज भी बनाई गई है. सो मैं जिस एरिया से आया हूँ, आई वॉज इन दिल्ली सिंस लास्ट मेनी ईयर्स. इन 2017 आई स्टार्टेड विद सूरत. सो ओवरऑल आई हैव वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. बट प्रॉब्लम क्या है, मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है until unless वो किसी के काम नहीं है. So my mission is to help MSME business owners to become financial literate and empower them to build a profitable and cash rich business. This is the problem of every MSME. क्यों उनके cash flows इतने proper नहीं हैं and they are not able to take right decision, जिसके वजह से उनको ये problem create होती है. So my main objective is to create financial literacy and help them to empower them so that they can make right decisions. ये एक कुछ महीने पहले मैंने किसी का सेमिनार किया था. आई लव दिस कॉन्सेप्ट. किसी को पता हो रमेश भाई, ज्ञान, नॉलेज 3 टाइप का होता है. एक ऐसा नॉलेज होता है जो आपको पता है, यू नो दैट नॉलेज. दूसरा ज्ञान क्या होता है कि आपको पता है कि आपको पता नहीं है. और तीसरा नॉलेज क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको पता नहीं है. ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पता ही नहीं है कि पता नहीं है? ऐसी कोई चीज ही नहीं है. बट अगर हमको पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एफर्ट्स लेना चालू करते हैं. तो इसका मतलब हम उसी पे एफर्ट्स लेते हैं जो हमको पता है कि हमको पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दौड़ना आता है तो मुझे पता है कैन रन. अगर मुझे पता है कि स्विमिंग नहीं आती, बट मुझे पता है मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो मैं एफर्ट्स कहाँ लगाऊंगा कि मैं सीखने की कोशिश करूंगा. फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको पता नहीं है. तो जब उनको आज जो टाइम मिला है मुझे, अगर मैं उसको कुछ टाइम दे पाऊँ ताकि वो उनको पता चल जाए
कि उनको पता नहीं है ये सब चीज़ें, तो शायद वो अपने जीवन में एफर्ट्स लगाएंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो देयर आर 6 एरियाज ऑफ लाइफ। एक तो स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फैमिली एंड मनी। ये 6 एरियाज ऑफ लाइफ है। हर इंसान को 6 एरियाज में काम करने होते हैं। बट अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हो तो आपके सारे एरियाज में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इक्विप योर सेल्फ टू टेक दी राइट डिसीजन। फाइनेंशियल लिटरेट होइए ताकि आप अपने एरियाज में भी एक्सेल हो और ग्रो करें अपने बिजनेस को भी। तो आज के इस वर्कशॉप के अंदर आप क्या सीखने वाले वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये सीखने वाले हैं ऐसी 4 फाइनेंशियल गलतियां जो हर बिजनेसमैन करता है। दूसरी चीज आप सीखने वाले हैं ऐसी 4 मन मिथ्स अबाउट बिजनेस के कैश फ्लोस के ऊपर। और आप सीखने वाले हैं इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रैक्टिकल बेसिस में कि किस तरीके से किया जाए ताकि वो प्रॉब्लम्स अपने बिजनेस में खत्म हो जाए। दिस इज नॉट जस्ट एक ज्ञान वर्कशॉप। यहाँ पे मैं आपको फालतू का ज्ञान देने वाला नहीं हूँ। जस्ट और जस्ट इम्प्लीमेंटेशन पे बात करूँगा, जो चीज़ आप अपने रियल लाइफ बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सको। बाकी सब फेल है। नॉलेज बहुत मिलेगा बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। एवरी पॉइंट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू टू मेक योर बिजनेस कैश रिच बिजनेस। ये मेरी गारंटी है। तो कहानियाँ सबको अच्छी लगती है, तो आज मैं एक सच्ची कहानी, मेरे रियल क्लाइंट की कहानी सुनाता हूँ। थोड़ा समझिएगा उसको, प्रैक्टिकली कैसे हो रहा होगा वो पूरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, कहानी क्या है, कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, बुक्स में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है बट वो बैंकरप्ट हो गई। तो उसकी कहानी समझते हैं। ये है एक रियल स्टोरी एक बिजनेस ओनर की जो मेरे क्लाइंट है। बट मैं आपको इसको स्टोरी को एक गेम की तरह समझाता हूँ। बिजनेस के अंदर जब वो क्लाइंट जब बिजनेस चालू किया उसने, तो जब उसने बिजनेस चालू किया तो एक बंदा था, उसने सोचा अपना बिजनेस चालू करूंगा। उसको एक प्रोडक्ट मिला और वो प्रोडक्ट बेचने को निकला। बट प्रोडक्ट बेचने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रोडक्ट मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की जाती है। तो जब उसने वो प्रोडक्ट देखा तो सबसे पहले उसने सोचा कि भाई ये प्रोडक्ट कितने दिन में किसको बेचूंगा और वो पेमेंट मेरे को कितने दिन में दे देगा। आज उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया बट वो क्या कर रहा है, मार्केट की फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा है। तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि मैं अगर मेरा ये जो माल है अगर मैं किसी को बेचूंगा तो वो कितने दिन में पैसा दे देगा। तो वो सोचता है कि भाई 20 दिन में तो मेरे को मेरा वेंडर, मेरा जो डेटर है वो पेमेंट कर ही देगा। तो ये सोचता है कि 20 दिन में मेरा पेमेंट मिल गया मेरे को। वो बोलता है कि भाई ये प्रोडक्ट की मेरे को मिनिमम इन्वेंट्री रखनी कितनी है। वो पहले सोचता है कि भाई बिजनेस के अंदर मेरे को 20 दिन में पैसा, तो मैं अगर माल बेचूंगा तो मेरे को 20 दिन के अंदर मेरे को डेटर्स से पैसा आ जाएगा। इन्वेंट्री मेरे को मिनिमम 30 दिन की रखनी पड़ेगी। और मैं माल अगर खरीदूंगा तो मेरे को क्रेडिटर को चुकाना पड़ेगा। क्रेडिटर मेरे को कितने दिन की उधारी देगा, वो बोलता है मेरे को क्रेडिटर 30 दिन की उधारी देगा। तो ठीक है, वो बोला कि मेरे को 20 दिन में पेमेंट आ रहा है, मेरा इन्वेंट्री मेरे 30 दिन की मैं रखूंगा और डेटर मैं क्रेडिटर 30 दिन में मेरे को चुकाना है। वो बोला कि भाई ये धंधा मेरे को समझ में आ गया, मैं इस धंधे में 2 करोड़ का महीने का सेल कर सकता हूँ। तो वो क्या बोलता है, मैं इस महीने में 2 करोड़ की सेल भी कर दूंगा। वो बोलता है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर 40% जीपी है। जीपी का मतलब पता है ना सबको, क्रॉस प्रॉफिट। कि भाई जो माल खरीदने में बेचने में जो मेरा कॉस्ट लग रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो मेरा जीपी है माइनस करने के बाद। वो 40% मेरा जीपी है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट बोलता है 10% तो मैं कमा ही लूंगा इस धंधे के बाद। जब मैंने ये वर्किंग, उसने सोचा कि भाई ये धंधा मैंने किया है और ये धंधे के अंदर ये पैरामीटर हैं, और मैं अगर अब ये नीचे समरी बनी, क्या बनी, सेल 2 करोड़ करेगा, दिख रहा है सबको। वेरिएबल कॉस्ट 1.2 CR, क्यों, 40% अगर जीपी माइनस कर दोगे तो इतना कॉस्ट 1 करोड़ 20 लाख रुपए बचेगा। इतना मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। किसी को समझ नहीं है तो स्टॉप कर दें, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो जीपी 80 लाख रुपए मैं बेचूंगा, 2 करोड़ का 40% 80 लाख रुपए मेरा जीपी हुआ। फिक्स्ड कॉस्ट,
अगर नेट प्रॉफिट 10% है तो इसका मतलब मैं 20 लाख कमाऊंगा, 2 करोड़ का 10% 20 लाख, तो बाकी का डिफरेंस क्या है? फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला है और कुछ अलग चीज नहीं है, ये फॉर्मूला से पूरा बन गया। तो नेट प्रॉफिट 10% कमा लिया। ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ कि कितनी मिनिमम सेल करूं जिससे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट निकल आए। तो अगर मैं 1 करोड़ 50 लाख का सेल करूंगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट निकलेगा, मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, मेरा फिक्स कॉस्ट तो निकल ही जाएगा। ये कैसे आया? फॉर्मूला है, जीपी को फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया कि 1.5 करोड़ की मिनिमम मैं सेल करूंगा तो ये लगेगा। ये उसने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई। डेटर में कितना पैसा लगेगा? 1 करोड़ 33 लाख रुपए। कैसे? कि भाई 2 करोड़ का माल बेचूंगा, 20 दिन की उधारी है, तो 1 करोड़ 33 लाख तो डेटर में फंसा रहेगा मेरे। इन्वेंट्री में कितना फंसा रहेगा? 30 दिन की उधारी है, 1 करोड़ वेरिएबल कॉस्ट का, क्योंकि माल तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, तो उसका मैं 30 दिन का इन्वेंट्री मैनेज करूंगा तो मेरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए मेरे को इन्वेंट्री में चाहिए होंगे। और क्रेडिटर भी 1 करोड़ 20 लाख, क्यों? 30 दिन की उधारी है, सिमिलरली वो पेमेंट ही मेरे को चुकाना है, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो मेरे को वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी? डेटर प्लस इन्वेंट्री माइनस क्रेडिटर, इतने का मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा बिजनेस के अंदर। समझ में आ रहा है? आर यू ऑल विथ मी? 1 करोड़ 33 लाख रुपए उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है बंदा। ये भाई साहब बोले कि भाई 2 करोड़ का माल बेचूंगा, 20 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा, बल्ले बल्ले हो गए। मैं तो 1 करोड़ 33 लाख रुपए काम करता हूँ, पापा से मांग लेता हूँ। पापा ये मॉडल समझाया, पापा को दिया, पापा ने बोला कि पापा ये देखो 20 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 1 करोड़ 33 लाख आप मुझे दे दो। तो पापा ने बोला जबरदस्त मॉडल है, 1 करोड़ 33 लाख रुपए ले लो। तो 1 करोड़ 33 लाख रुपए ले लो, तो सोचा 20 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, साल का कितना कमाऊंगा? 2 करोड़ 40 लाख, बल्ले बल्ले कि घर भी आ जाएगा मेरा, फिर मैं फॉरेन टूर भी जाऊंगा, मम्मी के लिए मैं तीर्थ यात्रा भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, सारे सपने संजो लिए। भाई ये प्रॉफिट है और ये धंधा होने वाला है, 2 करोड़ 40 लाख मैं तो कमा रहा हूं इस धंधे के अंदर। ये खुश हो गया और अपना धंधा आज चालू करता है। चालू किया, माल खरीदा तो सबसे पहले क्या हुआ, और बेचा उस माल को तो सबसे पहले क्या हुआ, जो डेटर 20 दिन में देने वाले थे वो क्या हो गया, वो बोला 20 दिन में तो नहीं दे पाऊंगा सर, मैं 30 दिन कर देता हूं। तो 30 दिन करते ही जो वर्किंग कैपिटल जो 1 करोड़ 33 लाख लगनी थी वो कितनी लग गई? 2 करोड़ रुपए लग गई। एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल कितनी लग गई? 67 lakhs। जस्ट 10 days ऑफ डेटर मिसमैनेजमेंट का 10 दिन। वो बोला कि भाई 30 दिन में तो पैसा नहीं दिया किसी ने, तो भाई ठीक है 67 लाख रुपीस का वर्किंग कैपिटल और लग गए। जो पैसा आने वाला था 20 लाख रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा, वो तो आना छोड़ो, वो तो गया। अब बोला कि नया बिजनेस है, जब नया बिजनेस है तो क्या होता है कि भाई इन्वेंट्री भी रखनी पड़ती है, भाई माल धीरे धीरे बिकता है, तो धीरे धीरे बिकता है तो 30 दिन की जो उधारी थी, जो इन्वेंट्री में माल रखना था, वो हो गया 45 दिन। वर्किंग कैपिटल कहाँ लगी? 1 करोड़ 33 लाख रुपए। अब क्या हो गई? 1 करोड़ 27 लाख और लग गई। 15 दिन की वर्किंग कैपिटल और बढ़ी, तो कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए? 2 करोड़ 60 लाख। इंक्रीज कितना हुआ? 1 करोड़ 27 लाख का वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। अब बोल रहा है यार पैसा भी लग रहा है, अब क्या करूं? सेल बढ़ाऊंगा तो ही जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बोलता है मैं एक काम करता हूँ, जीपी कम कर देता हूँ, जीपी कम करूंगा तो ही माल बिकेगा, नहीं फिर तो 40% का बोलता है, मैं काम करता हूँ 38% कर देता हूँ और 10% का 8% कर देता हूँ। लो वर्किंग कैपिटल और बढ़ गई। सेल 2 करोड़ की, वो क्या करते हैं, जीपी कम किया तो 2 करोड़ का 3 करोड़ कर दिया होगा। वर्किंग कैपिटल कहाँ गई? 1 करोड़ 33 लाख की वर्किंग कैपिटल कहाँ गई? 3 करोड़ 93 लाख की। इंक्रीज कितना हुआ? 2 करोड़ 60 लाख रुपए। अब बोल रहा है कि भाई यार ये पैसा तो लगा ही जा रहा है बिजनेस के अंदर, अब ये बिजनेस के अंदर तो मैं टाइम नहीं, क्योंकि सब पैसे तो है नहीं, कैसे मैनेज कर रहा है। तो क्रेडिटर बोलता है भाई मैं तुझे 30 दिन की उधारी नहीं दे सकता, मैं तुमको दूंगा 15 दिन की उधारी। क्यों? तू टाइमली पेमेंट तो कर नहीं रहा मेरे को, मैं तुमको 30 दिन की उधारी नहीं दे सकता। तो बोलता है 15 दिन की उधारी कर देता हूँ। अब क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल और बढ़ गया।
कितनी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई? 3.53 करोड़। अब बोल रहा है कि भाई 15 दिन की उधारी, अब बोल रहा है कि भाई 4 करोड़ 86 लाख, तो सेल बढ़ाओ सेल बढ़ाओ। वो सोच रहा है कि भाई कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, वो नहीं समझ पा रहा है। तब तक सेल बढ़ाओ सेल बढ़ाओ सेल बढ़ाओ। मैं एक काम करता हूँ, जीपी और कम कर देता हूँ। जीपी मैं काम करता हूँ 35% कर देता हूँ, और नेट प्रॉफिट भी में 5% हो जाएगा, और सेल में 4 करोड़ कर देता हूँ। तो क्या हुआ? वापस वर्किंग कैपिटल बढ़ी। पैसा खाए जा रहा है खाए जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि बिजनेस में प्रॉब्लम कहाँ है, ये नहीं समझ पा रहा। वो बोल रहा है पैसा बस कहाँ निकालूं, बढ़ते ही जा रहा है, पैसा निकल ही नहीं रहा समझ। अब बोला पैसा ही नहीं मिला, क्रेडिटर बोलता है मैं तो उधार नहीं दे सकता सर, 15 दिन भूल जाओ, मैं 7 दिन दे दूं, वही बड़ी बात है। और बढ़ेगा। अब बोल रहे हैं कि भाई एमएसएमई आ गया, 30 दिन छोड़ो 45 दिन में लोग पेमेंट कर दे, वही बड़ी बात है। 30 दिन का छोड़ो 45 दिन हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। माल पैसा नहीं है, गलत डिसीजन ले रहा है, इन्वेंट्री में और जो 45 दिन का माल था वो 60 दिन का कर दिया। अब उधार में माल बिक ही नहीं रहा, कोई क्रेडिट दे ही नहीं रहा, जीरो हो गया क्रेडिट। 11 करोड़ 20 लाख की वर्किंग कैपिटल। अब आएंगे लोन वाले। अब बोलेगा भाई 11 करोड़ 20 लाख की मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो भाई कैसे काम करूं? अब लाएंगे लोन के कंसल्टेंट। वो आएंगे, सर लोन ले लो लोन ले लो, मैं आपको लोन देता हूं, लोन सैंक्शन करवा देता हूं। वो मरता क्या नहीं करता, क्या बोलेगा? करवा दे सैंक्शन। और सूरत में बेस्ट पार्ट क्या है? जितना चाहे लोन मिलता है। क्यों मिलता है? कारण ये है, लोन मिलने की क्वालिफिकेशन क्या है? बैंक क्या देखता है? इन्वेंट्री, डेटर्स, उसका 80% माइनस क्रेडिटर। इन्वेंट्री है इसके पास, क्रेडिट डेटर्स भी है, उसका 80% दे देगा लोन, लोन तो मिल जाएगा। बट इफेक्टिवली हो क्या रहा है? इसके पास वर्किंग कैपिटल बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। यही होता है। एक प्रॉफिटेबल, आज इस बिजनेस में 20 लाख का प्रॉफिट आज भी दिख रहा है, दिख रहा है। 2 करोड़ 40 लाख बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है, बट हाथ में है? सवाल है नहीं। कहाँ गया पैसा? पैसा ही चला गया। अब ये बिजनेस इफेक्टिवली बैंकरप्ट बिजनेस है। दिस इज नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। कोई ये बोलता है मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ये दिखने में बहुत अच्छा बिजनेस दिख रहा है, बट दिस इज ए बैंकरप्ट बिजनेस। ना तो इसमें कोई शेयर होल्डिंग इन्वेस्ट करेगा, ना कोई शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा। पैसा फंसा हुआ, जितना पैसा हो तो बढ़ता ही जा रहा है, जितना खाएगा उतना खाता ही जाएगा। बिजनेस है ये। क्यों? इसमें सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिस है? आपको बता सकता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिस किया गया है इस पूरे गेम के अंदर? रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स के डेज है, उसमें डिफरेंस है। रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स के डेज है, उसमें डिफरेंस है। तो उसकी वजह से उसको जो वर्किंग कैपिटल लग रही है, तो वो जितना भी टर्नओवर बढ़ाएगा उसके साथ में वर्किंग कैपिटल बढ़ती ही जाने वाली है। अदरवाइज वो डेज नेगेटिव होते हैं। जैसे रिसीवेबल्स के डेज 30 डेज पकड़ लो, और पेएबल्स के डेज, इन्वेंट्री प्लस पेएबल्स के डेज आप 50 डेज पकड़ लो, तो इसका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होता है। और कैपिटल इस बुरे कहानी में सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, इज कैश फ्लो। इस बिजनेस में इस बंदे ने कैश फ्लो को तो ध्यान ही नहीं दिया। सर ने एकदम सही बोला, कैश इज किंग, कैश इज किंग, प्रॉफिट इज क्वीन। कैश नहीं है ना तो बंदे बिजनेस चलाना ही नहीं चाहिए। अगर कैश है तो ही बिजनेस चलेगा। ये खून है बिजनेस का, नहीं चलेगा तो क्या होगा? खून नहीं रन करेगा तो बिजनेस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, ये पैसे खाता ही जाएगा, खाता ही जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आप खुद इतना परेशान हो जाओगे कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। आप खुद मेंटली परेशान हो जाओगे, यार मैं कमा भी रहा हूँ बट मेरे पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो लोगों के पास पड़ा हुआ है, आप और लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं और आपको लोग पैसा दे नहीं रहे। ये एक विशियस साइकिल बन जाएगा। सबसे यही होता है। और मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस, मैं बोल रहा हूँ 95% ऑफ द बिजनेस होने का यही प्रॉब्लम है। 5% अच्छे बिजनेस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह अच्छे काम करने वाले बिजनेस भी मिलेंगे, बट 95% लोगों की यही काम है। कभी भी CCOD टर्नओवर कम ही नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। एंड इट इज ए नेवर एंडिंग थिंग। आज तक मैंने किसी को सुना ही नहीं है कि मैंने अपनी CCOD चुका दी। आज 1 करोड़ ली है, अगले साल 2 करोड़ की होगी, 2 करोड़ की 3 करोड़ हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पल्स, मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ यहाँ पे जिनका ये हालत है, क्योंकि अपने बिजनेस का उन्होंने कैश फ्लो मैनेजमेंट।
तो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या दबाना है वो, Alt P, विंडोज P। बिजनेस फेल नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं 95% ऑफ द बिजनेस फेल हो जाता है। दिस इज नॉट द ट्रू स्टोरी। बिजनेस which fail 95% fail because of poor financial management। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग मिस आउट कर जाते हैं। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि प्रॉब्लम कहां पे है। अभी तो मैंने खाली कहानी बताई है, ये होता है, और ये मेरे क्लाइंट की कहानी है, जो मैंने आपको सिर्फ क्लाइंट का नाम नहीं बताया, उसके नंबर्स बता दिए कि यही हुआ है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बट गलती कहां कर रहे हैं वो समझना चाहिए। पहली 4 गलतियां मैं जो समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए एक एक गलती के बारे में। पहली गलती, ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं, ये चल रहा है। सबसे बड़ी गलती बिजनेस के अंदर क्या है, ये डैशबोर्ड मिसिंग है। दिख रहा है डैशबोर्ड? ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं सब, ब्लाइंड गेम। किसी को पता ही नहीं है उनका जीपी कितना है, एनपी कितना है। अपना पैसा जो आज धंधे में लगाया है, आज आपने 1 लाख रुपए पूंजी लगाई, लोन भी लगाया, बट आपने 1 लाख जो लगाया उसमें आपने रिटर्न कितना कमाया, किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? वो पैसा उनको फ्री में लगता है। पैसा खुद का पैसे का कोई ब्याज जोड़ता ही नहीं है, बैंक के पैसे का ब्याज जोड़ता है। उनको पता ही नहीं मेरा खुद का पैसा कितना रिटर्न दे रहा है। इन्वेंट्री टर्न, मेरा जो इन्वेंट्री है मैंने कितनी बार घुमाया है, 1 बार घुमाया, 2 बार, 3। टेक्सटाइल वाले तो 2 बार 3 बार घुमा लेते और उससे वो राजा है। मैं इतने टेक्सटाइल वाले को जो 6-6 बार इन्वेंट्री घुमा देता है, बट क्यों? कभी इन्होंने देखा ही नहीं है कि भाई हो क्या रहा है उनका। करंट रेशियो सबसे बड़ा गलती। प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैंने आज ओडी ली, ओडी लेके धंधे में यूज करना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, फैक्ट्री खरीद ली, घर खरीद लिया। शॉर्ट टर्म फंड्स को मैंने लॉन्ग टर्म में यूज कर लिया, तो आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम आने वाला ही है। करंट रेशियो कोई नहीं देख रहा, क्विक रेशियो कोई नहीं, मतलब ही नहीं पता। पहले बात तो लोगों को मतलब नहीं पता ये क्या हो रहा है, तो मतलब ही नहीं। मैंने सबसे पहले क्या बोला, आपको पता ही नहीं है कि आपको पता नहीं है। ये आपको पता ही नहीं है कि आपको पता नहीं है। डेटर में कितने दिन फंसा हुआ पैसा है, इन्वेंट्री, क्रेडिटर, कैश कन्वर्जन साइकिल। आज मैं धंधे में पैसे डाल रहा हूं, कितने दिन में मेरे को पैसा वापस मिल रहा है। आज मैंने इन्वेंट्री अगर 1 लाख रुपए डाला है, वो 1 लाख रुपए वापस मेरे घर में कितने दिन में आ रहा है, किसको पता है? नहीं पता। उनको पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी। वर्किंग कैपिटल लगनी कितनी चाहिए, 2 करोड़, लग कितनी थी, 4.5, पता ही नहीं लगनी कितनी चाहिए। Nobody knows what is the plan। आपके बिजनेस का जो मैंने स्टार्टिंग में फिजिबिलिटी एनालिसिस करी थी, किसी ने अपने बिजनेस में फिजिबिलिटी पहली बार तो एनालिसिस करी नहीं कि भाई कितना लगना चाहिए, इस इंडस्ट्री में कितना लगना चाहिए, लग कितना रहा है वो भी नहीं पता। तो सब ब्लाइंड गेम खेला जा रहा है। आज बिजनेस में प्रॉफिट दिख रहा है 1 करोड़ 21 लाख, प्रॉफिट तो है बुक्स के अंदर। कैश प्रॉफिट कितना है, कितना पैसा कैश में रियलाइज होगा, वो कौन देखेगा? वो भी कोई नहीं देखता है। एट द एंड ऑफ द डे सब श्री राम जी की कृपा है और चल रही है। प्रॉफिट आ रहा है, हम सोच रहे हैं गाड़ी चल रही है। प्रॉब्लम, और ये सोचते हैं यार हमारा सिर, हम लोग कैश फ्लो, भगवान मंदी है, मार्केट का प्रॉब्लम है, बस ऐसे ही रोना धोना। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक, वी आर प्लेइंग ए ब्लाइंड गेम। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है रॉन्ग एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये क्या है? जब पापा घर पे होते थे, पापा मम्मी को पैसे देते थे, अगर 10,000 का खर्चा होता तो माँ क्या करती थी, 2,000 रुपये पॉकेट में रख लेती थी, छुपा के रख लेती, और 8,000 से घर चला लेती थी। और 2,000 रुपये जब बहन आती थी रक्षाबंधन में, उसके पास पैसे होते थे और वो सबका काम करती थी और सब कुछ अच्छे से मैनेज करती थी। हम क्यों नहीं कर पाते? हम अपने फंड्स को ऐसे यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने कभी एनालाइज ही नहीं किया कि हम अपने फंड्स को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। तो पैसा आया, पैसा पेमेंट कर दिया, कितना करना चाहिए किसी को पता नहीं है। तो दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। बिजनेस के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मिसिंग है। अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन करते हैं,
पैसा आया बैंक में, पैसा जो आया, बस जो इमरजेंसी दिखाए, भाई क्रेडिटर ये ज्यादा उग्राणी मांग रहा है, इसको पेमेंट दो, जो ज्यादा उग्राणी मांगेगा वो पैसा उसको मिलेगा, और कुछ नहीं है। तो सिंपल, देयर इज नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, देयर इज नो फाइनेंशियल कंट्रोल, यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज। फंड्स आएंगे, उसको घर खरीदने में लगाएंगे, उसको फैक्ट्री बनाने में लगाएंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, बट ये नहीं देखेंगे बिजनेस के अंदर उस फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। दिस इज द सेकंड मिस्टेक एवरी बिजनेसमैन। तीसरा मिस्टेक, इग्नोरिंग द गेम ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो मैंने आपको गेम दिखाया सबसे पहले एक्सेल के अंदर, वो यही गेम था। पता ही नहीं है मेरी वर्किंग कैपिटल नीड कितनी है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है पैसा, कुछ भी नहीं पता, कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, कितना लग रहा है, कुछ पता नहीं है, सब कुछ राम भरोसे। एंड हम बोलते हैं पैसा कहाँ गया, क्यों? कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है, हम वर्किंग कैपिटल के गेम को इग्नोर करते हैं, हमें खुद को नहीं पता हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, वी आर टोटली अनअवेयर। ये तीसरी मिस्टेक। और चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग ही हो रही होती है, फाइनेंस होता ही नहीं है। हम एमएसएमई का वो प्रॉब्लम है, दिस इज आज एमएसएमई बिजनेस क्या सोचता है, अकाउंटिंग हो गई ना बहुत बढ़िया है, बस अकाउंटिंग हो जाए प्रॉपर्ली, उतना ही चला लूँ तो मेरा काम हो जाए, जीएसटी रिटर्न टाइमली भरी जाए, इनकम टैक्स रिटर्न मेरा टाइमली चला जाए और मैं खुश हूँ, सब काम टाइमली हो रहा है। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग के अलावा भी बहुत कुछ होता है। तभी तो हम ये प्रॉब्लम आ रही, कैश फ्लो का प्रॉब्लम। अगर अकाउंटेंट के ऊपर हम ओवर रिलाई करते हैं, कभी भी कितने लोग हैं जिनकी बैलेंस शीट 31 मार्च को तो फाइनल हो जाती है, ऑडिट किसका अप्रैल में हो जाता है, किसी का हाथ उठाइए जिसका ऑडिट अप्रैल में हो जाता है। अप्रैल किस में ऑडिट हो जाता है, किसी का नहीं होता बॉस। कैसा क्या ट्रांजेक्शन, मतलब 31 मार्च के बाद रहता क्या है, पहला चीज बताइए। कोई आप परचेज के बिल चढ़ा सकते हो, बैंकिंग को ट्रांजैक्शन कर सकते हो, नो। टीडीएस को बाद में काटोगे, नहीं। जीएसटी सब ऑनलाइन है, तो भी 31 मार्च अप्रैल की ऑडिट क्यों नहीं हो जाती? क्वेश्चन यही है कि भाई हम इतने इग्नोरेंट हैं, वी ऑलवेज रिलाई ऑन अकाउंटेंट्स, एंड अकाउंटेंट जो बोले वो कर लो, वो हो जाए वही बड़ी बात है। डिलेड सेल इनवॉइसिंग, डिलेड परचेज, अगर बैलेंस शीट प्रॉपर्ली कभी क्लोज होती नहीं टाइमली, और जब टाइमली अगर क्लोज हो भी जाए तो वो सही हो या गलत हो, वो भी कोई कंट्रोल प्रॉपर्ली नहीं है, बस काम प्रॉपर्ली हो जाए। तो आप देखोगे सिर्फ अकाउंटिंग ही हो रही है, डिसीजन कहीं नहीं आ रहा। बट रियल प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन डिसीजन को आप बिजनेस के अंदर ले आओगे, अकाउंटिंग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। बट हम नंबर कभी अकाउंटेंट से मांगते ही नहीं है, बता नंबर, क्योंकि अकाउंटेंट को नहीं पता क्या नंबर होता है। दिस इज द फोर्थ मिस्टेक ए बिजनेस ओनर डू, वी ओवर रिलाई ऑन द स्किल्स ऑफ अकाउंटेंट्स। हम ये सोचते हैं अकाउंटेंट हमारा सारा काम कर देगा और हमें प्रॉपर्ली वो रिपोर्ट मिल जाएगी। जिस पे मैं आता हूँ 4, ये मैंने 4 फाइनेंशियल आपको मिस्टेक्स बताई कि ये 4 फाइनेंशियल मिस्टेक्स हर बिजनेस ओनर करता है। मैं 4 ऐसी मिथ भी बताता हूँ जो बिजनेस ओनर के दिमाग में है। पहला मिथ क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू कैश फ्लो। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैंने आज मोबाइल खरीदा, 8,000 रुपये का मोबाइल मैंने खरीदा और मैंने आज 10,000 रुपये में बेच दिया। 8,000 का मोबाइल 10,000 में बेच दिया, प्रॉफिट कमाया, हाँ 2,000 रुपये। अब पैसा क्या 2,000 रुपये मेरे घर पे आ चुका है। हो सकता है मैंने क्रेडिट में बेचा हो सकता है मैंने क्रेडिट में बेचा हो, बट मैंने आज चुका दिया मेरे वेंडर को, तो पैसा तो मेरा घर से निकल गया, बट पैसा तो आया ही नहीं। तो प्रॉफिट अलग है, कैश फ्लो अलग है। बट लोगों को क्या लगता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो को समझ तो है नहीं, प्रॉफिट ही देखते हैं कि भाई मैंने इतना कमा लिया। अल्टीमेटली प्रॉफिट वही है जो घर पे है, बाकी सब भ्रम है। जो घर पे नहीं है वो प्रॉफिट नहीं है, वो आप किसी और के ऊपर भरोसा करके बैठे हो, वो पैसा आएगा आपके पास, तो ही तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है। हम अगर ये सोच लें कि वो पैसा हमारा है, बाहर रखा हुआ है, तो जितना ज्यादा आप ये सोच के बैठोगे मेरा प्रॉफिट जितना कमा लिया मैं खुश हूं, तो बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा ही रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मिथ है,
सेल्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैश फ्लो। जितनी सेल बढ़ाऊंगा उतनी कैश फ्लो बढ़ जाएगी। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो 5 करोड़ की सेल कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने गेम ऑफ वर्किंग कैपिटल में दिखा है, सेल बढ़ता है ऑटोमेटिक वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है। हम जब सेल्स बढ़ रही है, लोगों को क्या लगता है बस सेल बढ़ा दो, मेरी सेल दे, हायर करेंगे कंसल्टेंट, वो कंसल्टेंट बोलेंगे स्ट्रैटेजिक ज्ञान देंगे, भाई आप सेल में ये स्ट्रैटेजी लगाओ, ये स्ट्रैटेजी लगाओ, फलाना लगाओ, ढींगा लगाओ। जब वो लगा भी लेते हैं और रिजल्ट भी आने लगता है, बट वो सेल पूरी नहीं कर पाते। क्यों? सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल तो मिसिंग ही है बिजनेस के अंदर, वो तो एनालाइज ही नहीं किया। जब एनालाइज नहीं किया तो सेल्स तो वैसे भी नहीं होनी। और लोन और लोन और लोन, फिर लोन के कंसल्टेंट आएंगे, लोन देंगे, लोन देंगे तो और ब्याज बढ़ेगा, और ब्याज बढ़ेगा तो और पैसा तो जाएगा ही। तो सेल्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैश फ्लो, ये गलत है। सेल्स इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ द कैश फ्लो इफ इट इज नॉट राइटली मैनेज्ड। तीसरा सबसे बड़ा मिथ, कैश फ्लो इशू हैपेंस ओनली इन फेलिंग बिजनेस। अगर मैं नुकसान कर रहा हूं ना, मेरा बिजनेस डूब रहा है, तो ही कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। ये भी सबसे बड़ा मिथ। कैश फ्लो का इशू कब सॉल्व होता है, प्रॉब्लम कब आती है, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे जैसे ग्रो करोगे वैसे आपका कैश फ्लो का प्रॉब्लम चालू होगा। जैसे आप ग्रो नहीं करोगे, आपका पुराना क्रेडिट डेटर को पैसा दे रहा है, ग्रोथ सेल तो कर ही नहीं रहे हो आप क्या करो, पुराने डेटर से पैसा आ रहा है तो आपका कैश फ्लो इशू प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्यों? पुराना पैसा आ रहा है। नया पैसा जब आएगा, जब नया पैसा, नया ग्रोथ करने की जरूरत है, तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम चालू होता है। तो कैश फ्लो इशू हैपेंस ओनली इन ग्रोइंग बिजनेस। चौथा फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट, वी हैव ए सीए हु हेल्प्स अस इन ऑल दिस थिंग्स। हम ये सोचते हैं हमारे पास सीए है, वो हमको हमारे प्रॉब्लम्स हमको बता देगा और हम सब ठीक कर लेंगे। सीए के पास आप जाते हो ऑडिट के लिए, जब सब कुछ हो चुका होता है, वो क्या बताएगा? और सीए इज ए वेरी बिजी मैन, मैं ये पहले क्लियर करूँ। वो उतना ही बताएगा जितना आप पूछोगे, उससे ना एक चीज़ ज़्यादा बताएगा ना एक चीज़ कम। आज मैं बैठा हूँ, मैं भी सीए हूँ, आप मेरे से जो सवाल करोगे मैं उसी का ही जवाब देने वाला हूँ। आप मेरे से आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सब कुछ बताऊंगा, जितना बता सकता हूँ बता दूंगा। बट अगर आप मेरे से राइट क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो राइट आंसर कभी आने वाला भी नहीं है। तो आपको अपने सीए से राइट क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, राइट टाइमली पूछना जरूरी है। टाइमली पूछोगे, जैसे जब नंबर्स ही नहीं है हाथ में, तो सीए तो क्या बोलेगा, हाँ बस प्रॉफिट है, अच्छा वो क्यों, उसकी क्या पड़ी है उसको आपके बिजनेस से? प्रॉब्लम है तो पूछो, वो बता देगा ये प्रॉब्लम, कैश फ्लो का प्रॉब्लम है तो शायद वो कुछ बताए, पर आपने पूछा ही नहीं। तो यू डोंट, सीए विल नॉट डू एनीथिंग। हम ये सोच रहे हैं हमारे सीए हमको सब बता रहा है, ये सबसे बड़ा भ्रम, वो कुछ नहीं बता रहा आपको। तो 4 बिगेस्ट मिथ मैंने भी वो भी बता दी, 4 प्रॉब्लम बता दी, 4 सबसे बड़ी मिथ्स भी बता दी। 3 चीजें जो हमें अपने बच्चों से सीखनी चाहिए। हम ये अपने बच्चों को ज्ञान पेल देते हैं, पर हम अपने बिजनेस के अंदर नहीं फॉलो करते। क्या गलत ज्ञान क्या पेलते हैं? बजटिंग करो बेटा, जितना पैसा है अपने हिसाब से खर्चा करो, ज़्यादा कम मत करो, समझ के खर्चा करो। ये हम बच्चों को बहुत ज्ञान देते हैं, हमारे बच्चों को, बेटा आज 100 रुपये तेरे गुल्लक में है, तेरे को डिसाइड करना है किस तरीके से खर्चा करेगा। ज्ञान दे दिया। हमने कब अपने बिजनेस में बजट किया? हमें किस हिसाब से खर्चा करना वो तो कर ही नहीं रहे हम अपने, तभी तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ रहा है। जहाँ पे जो चीज़ जानी चाहिए वो जा ही नहीं रही, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हो ही नहीं रही, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है ना। दूसरा सबसे बड़ा ज्ञान क्या पेलते हैं? बेटा मुसीबत के टाइम खर्चा बचा के रखो, गुल्लक में पैसा डालो ताकि फ्यूचर में काम आएगा। हमने अपने बिजनेस में क्या कैश फ्लो बनाया, क्या रिजर्व्स बनाए? कोविड के टाइम में तो सबकी बैंड बच गई। दे डोंट हैव एनी गुड वे, कहाँ पे भी पैसा आ रहा है जा रहा है, फंड ही नहीं है। किसके पास अपने बिजनेस के अंदर 6 महीने का कैश फ्लो रिजर्व है किसी के पास? शायद 2 आउट ऑफ ए ऑडियंस ऑफ 50। हाउ मच परसेंटेज? 4%। 95% बिजनेस फेल्स बिकॉज ऑफ पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट। दिस इज द साइंस। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इमरजेंसी फंड कभी बनाया ही नहीं, हमें कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। क्यों? हम इमरजेंसी फंड को यूटिलाइज करना हमको आता ही नहीं, कैसे बनाना है पहला चीज़। हम जब बनाते ही नहीं है तो पहली बात तो बनेगा नहीं, और हम दुखी रहेंगे यार कैश फ्लो का प्रॉब्लम।
जितनी चादर उतने पैर पसारो बच्चे, जितनी चादर है बेटा उतने ही पैर पसारो। ये ज्ञान देते हैं बच्चों कि भाई आप अपनी 100 रुपये तुम्हारे पास है, तुम 100 से ज़्यादा खर्चा मत करना। लोन पे लोन, ये ओडी लोन, ये सीसी लोन, कुछ लोन नहीं मिला, कार लोन के ऊपर होम लोन, टॉपअप लोन, टर्म लोन, और जितने लोन है वो भी नाम ले लो, वो भी देते रहेंगे। कैश फ्लो मैनेज नहीं किया। दिस इज द, ये 3 चीज़ें हम अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं और हम अपने बिजनेस में ये चीज़ फॉलो नहीं करते। एंड वी थिंक हमारे सर कुछ बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ श्री राम जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, कुछ चमत्कार करेंगे और वो कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो 3 चीज़ें अब मैंने आपको क्या बता दिया, 4 ऐसी गलतियाँ जो हम बिजनेस ओनर करते हैं, 4 ऐसे मिथ जो हमने पाल रखे हैं, 3 ऐसी चीज़ें जो हमने बच्चों को ज्ञान देते हैं हम खुद फॉलो नहीं करते। ये 3 चीज़ें बता दी। अब मैं आपको इसका, अब आप पूछोगे सर सोल्यूशन तो बताओ, सोल्यूशन भी बताता हूँ। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले सोल्यूशन है बिजनेस का बेसिक्स। इंसान में क्या है, अगर बेसिक्स पता हो ना, अगर वो बेसिक्स सही से फॉलो करता रहे ना, तो ही एक रिमार्केबल चीज है, एक डिसिप्लिन और एक बेसिक। अगर हम मोटे हैं, इफ यू वांट टू लूज वेट, बेसिक क्या है? किशन भाई आप बता दो बेसिक क्या है? आपका तो खुद का जिम है, व्हाट इज द बेसिक? सिर्फ वो चीज कर लेते वजन घट जाए। पहले तो हमको रिपोर्ट होना चाहिए कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। दूसरा, खाना कम करना पड़ेगा, खाना कम करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज क्या नहीं करना है वो सबसे पहले। ये बेसिक है। खाना नहीं खाना, गलत खाना नहीं खाना, और थोड़ा वॉक कर लेना, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लेना, वजन सब उतर जाए। ये बेसिक्स है। बट बेसिक तो फॉलो कोई करता ही नहीं है। कितना मेजर करना है वो भी नहीं पता, वजन इतना घटना है वो भी नहीं पता। मेजर कर लेंगे बट उसके ऊपर बेसिक्स, राइट बेसिक्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? नो। सिमिलरली कैश फ्लो में भी यही चीज़ है। मैं आपको 4 बेसिक्स बताऊंगा, वो फॉलो कर लोगे, सारी कैश फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सवाल ये कि आप फॉलो करोगे या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई बताने वाला नहीं। सबसे पहला बेसिक, प्रिपेयर बिजनेस बजट्स। हमको हमारे बिजनेस में बजटिंग बनानी सबसे बड़ी जरूरत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बजट कैसे बनाया जाता है। ये क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। देखो मैं आज आपको ज्ञान देने नहीं आया हूँ, रियल में आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आया हूँ। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर लो, इसका अगर 10% भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दो, आई थिंक यू विल गेट ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। ये क्या दिख रहा है आपको? बिजनेस का बजट। ये बोल क्या रहा है ये समझ लो थोड़ा। ये क्या बोल रहा है कि रेवेन्यू लास्ट ईयर आपकी कितनी थी? ये बोल रहा है 5 करोड़ की रेवेन्यू थी। वेरिएबल कॉस्ट कितने था? मतलब कि किस टाइप का माल, आज मैं अगर 5 करोड़ का माल लैपटॉप बेच रहा हूं तो 5 करोड़ के लैपटॉप का कॉस्ट कितना है? सैलरी वैलरी भूल जाओ, सिर्फ उसका वेरिएबल कॉस्ट। वो रेवेन्यू तभी होगा जब वो कॉस्ट इनकर करोगे। अगर वो रेवेन्यू हुआ ही नहीं तो कॉस्ट भी नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, जो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L में देखते हैं। परचेस करोगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट। कि भाई मैंने 5 करोड़ का माल बेचा तो उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट मेरा 2 करोड़ 68 लाख रुपया है। तो अगर 5 करोड़ से 2 करोड़ 68 माइनस करूंगा तो मेरी जीपी आ जाएगा। तो जीपी कितना है? 13 करोड़ 61 लाख रुपए। जीपी 27% मैंने कमाया। फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भाई मैंने फिक्स्ड कॉस्ट कमाया 4 करोड़ 51 लाख रुपए। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 9 करोड़ 10 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट कितना कमाया मैंने? 18%। ये मेरा लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। अब हमने क्या किया, उसको हर महीने हमने तोड़ लिया अपने हिसाब से। रेवेन्यू, भाई इस महीने क्या रेवेन्यू होगी?
कितना % इंक्रीज करूंगा, ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से बना लीजिए कि भाई मेरे को इस महीने अगर 10 लाख रुपए माल बेचना है, अगले महीने मेरे को लग रहा है कि मेरे को सेल ज़्यादा होती है, उस टाइम सीजन का टाइम है तो मैं 20% माल एडिशन। हमने अपने बिजनेस का बेसिस बना लो। कोई रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, वो सोचता है कि किस हिसाब, हर आदमी का एक बेसिस कुछ ना कुछ होगा ही। उनको पता ही है कि मैं ऐसे ऐसे माल बेचूंगा, इतना मैं टारगेट बजट बनाता हूँ कि इतना मैं माल बेचूंगा। तो जब मैंने बेचा तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को पता चल गया कि हर महीने मेरा रेवेन्यू कितना है, बजट बना लिया। समझ में आ रहा है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट, कि भाई इस सेल करूंगा तो उसके खर्चा कितना होगा, उस माल का कॉस्टिंग भी निकाल लो। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये देखो इसकी भी शीट है कि भाई ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतना था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा, रॉ मटेरियल, फ्रेट, पैकिंग, वेकिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस करके ये आपने बजट बना लिया कि भाई अप्रैल महीने में इस सेल के अगेंस्ट मेरा इतना बजट बनेगा, मई में इतना, जून में इतना, जुलाई में इतना, हर महीने का बजट बन गया। तो जब बजट बना तो आपको पता चल गया कि मेरे को इतने रेवेन्यू के अगेंस्ट मेरे को इतना 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 वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है, और इतना मैं जीपी कमाऊंगा, इस महीने 27, इस महीने 27, जो भी है मैं जीपी कमाऊंगा। फिक्स्ड कॉस्ट, अब ये फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लो कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं, जो सेल हो या नहीं हो तो भी इंकर होने, वेजेस, सैलरीज वो होने ही है। अब उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकले, जैसे वेजेस, अब 2,38,000, अब 2,38,000 राम कुमार, श्याम कुमार, गोपाल राय, सब के आपने वेजेस जोड़ लिए, हर महीने टू महीने आपने खर्चा जोड़ लिया, कितना वेजेस है। इलेक्ट्रिसिटी, किस मीटर पे कितना बिल आएगा, वो भी आपने इसका बजट बना लिया। सैलरी, किस आदमी को हर महीने कितनी कितनी सैलरी दूंगा, उसका भी बजट बना लिया। प्रिंटिंग, विजिटिंग कार्ड हर महीने कितने लग रहे हैं, लेटर हेड कितने लग रहे हैं, बिल बुक कितनी लग रही है, फाइल कितने लग रहे हैं, उसका भी बजट बन गया। कन्वेंस, अपने लोगों को, टीम को कोई कन्वेंस देता है तो उसका बजट बन गया। इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी मीटर का बजट बन गया। कंप्यूटर, हर महीने कंप्यूटर का बिल कितना आ रहा है, रिपेयर एक्सपेंडिचर। सॉफ्टवेयर, टेलीफोन, ये ERP है, स्पेक्ट्रम है, जीनियस है, क्लाउड है, हर किस महीने किस दिन इसकी AMC आ रही है। हर PNL आइटम का आपने क्या किया, आपने एक बजट बनाया। तो जब बजट बना, रेंट की हर चीज का आपने बजट बना लिया हर महीने टू महीने, तो आपको पता चल गया कि मेरा इतना फिक्स्ड कॉस्ट लगना ही है, भले कुछ भी हो जाए। तो आपने क्या बनाया, एक फाइनेंशियल समरी, जिसमें क्या हुआ, रेवेन्यू कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, आपको पता चला कि भाई इतना नेट प्रॉफिट इस महीने में कमाने वाला हूं, और कितनी मिनिमम सेल करूं जिससे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाए। तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट जब निकाली तो आपको क्या पता चला कि यार इस महीने तो अप्रैल मई महीने मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 37 लाख रुपए। तो अब मेरे को मिनिमम 1,37 लाख तो मिनिमम मेरे को सेल करना पड़ेगा जिससे ये 37 लाख निकल जाए। तो आपको पता चल गया। जब आपने क्या किया अपने बिजनेस का, पहला स्टेप क्या है, बिजनेस का बजट। मैंने आपको बता दिया कैसे बजट बनाएगा, वो भी बता दिया कैसे बजट बनेगा, पूरी स्ट्रेटेजी बता दी कि बजट आपके बिजनेस का ऐसा ही बनता है और कोई तरीका भी नहीं। अब आप बोलोगे आलस है, अगर नहीं कर रहे हो ये काम कितने दिन का, बता दूं ये हार्डली 3 घंटे का। अगर आप अपने बिजनेस के 3 घंटे के बजट बनाने में नहीं लगा सकते ना, तो आप बिजनेस नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हो और कुछ नहीं। इट्स इज ए रिक्वायरमेंट। आज भारत सरकार भी अपना बजट बनाती है नहीं बनाने, हर साल बजट आता है ना, फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, आज मेरा हर चीज का मेरा खर्चा कितना होने वाला है, कहाँ पे रेवेन्यू है, कहाँ पे लीकेज है, हर चीज का बजट बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया unionbudget.com वेबसाइट में जाओ, उनका पूरा बजट मिल जाएगा। हम अपने बजट का बिजनेस गवर्नमेंट बना लेती है, हम तो छोटा सा काम करते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते। क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम, ये खुद से क्वेश्चन करने का टाइम है कि भाई आर वी नॉट केपेबल टू डू इट और व्हाट, करना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, बजट बनाना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अप्लाई 4 अकाउंट फाइनेंशियल कैश फ्लो सिस्टम। ये क्या है, 4 अकाउंट फाइनेंशियल कैश फ्लो मॉडल, ये कोई नहीं बताएगा। हर कॉर्पोरेट, बिग फर्म्स, MNCs इस मॉडल का यूज करते हैं टू क्रिएट फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मॉडल है क्या, बहुत ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल है, बट करोगे तो ही जानोगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 4 अकाउंट सिस्टम क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, अपने बिजनेस का कैश फ्लो मैनेज क्यों नहीं हो पाते, क्यों पैसा आया हमको ही नहीं पता कहाँ चला गया। बजट बनाया हमने पहले। दूसरा क्या क्या, 4 अकाउंट मेथड बनाए। हम अपने बिजनेस में 4 अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 अकाउंट। पहला अकाउंट होगा कलेक्शन अकाउंट,
लिख लीजिए, मैं किसको भी लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला बनाएंगे हम कलेक्शन अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाएंगे वेंडर पेबल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, यू हैव टू क्रिएट 4 बैंक अकाउंट्स। हम अपने बिजनेस में एक ही करंट अकाउंट काम कर रहे हैं, एक ही ओडी में काम कर रहे हैं, बट इफ यू वांट टू इफेक्टिवली मैनेज योर कैश फ्लोज, हर कॉर्पोरेट्स इसी चीज का यूज करती है टू मैनेज देयर कैश फ्लोज इफेक्टिवली एंड इट विल क्रिएट ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। पहला क्या होगा, यू हैव टू क्रिएट 4 अकाउंट्स। पहला अकाउंट कलेक्शन अकाउंट, सारा पैसा उसके अकाउंट में आएगा। सेकेंड अकाउंट है वेंडर अकाउंट, जो भी वेंडर का जो पेमेंट है, वेंडर का जो टीवीसी ट्रू वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी खर्चे हैं वो उसी से पे होंगे। तो व्हेन यू पे, वेंडर अकाउंट से पे होगे। थर्ड अकाउंट इज फिक्स्ड कॉस्ट अकाउंट, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट के जो भी एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, वेजेस जो आपके लगने ही लगने हैं, वो आप क्या करोगे, उस थर्ड अकाउंट में डालोगे। और फोर्थ अकाउंट बोलते हैं कैश फ्लो रिजर्व, कैश रिजर्व अकाउंट। समझ में आया आपको? 4 अकाउंट बनेंगे। 4 अकाउंट, पहली स्ट्रेटेजी, पैसा आया तो बैंक वाला कभी भी आपको बोलेगा नहीं ये करके दो, कोई बताएगा भी नहीं, उसको पता इफेक्टिवली सूरत में किसी को पता भी नहीं है कि भाई ये चीज, सॉरी, कैश फ्लो रिजर्व अकाउंट। सेल है, आज मैंने 100 रुपए का माल खरीदा, बेचा, जब माल का पैसा आया 100 रुपए, तो उसमें कुछ प्रॉफिट है हमारा, है ही। हमको पैसा दिखता क्यों नहीं है, मैं इसको, स्ट्रैटेजी क्या होती है, जब 100 रुपए का माल का पैसा आएगा तो आपको क्या करना है, जो अगर फॉर एग्जांपल आपका नेट प्रॉफिट कितना है 10 टका, तो 10 टका ऑटोमेटिकली बैंक में मैंडेट डलते हैं। यू कैन आस्क बैंक टू मैंडेट कि जब कलेक्शन अकाउंट में जो पैसा आएगा आप मैंडेट कर दो कि ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे 10% जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली आप कैश फ्लो रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैंडेट चला जाता है, ऑटोमेटिक बैंक में उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पैसा आपका प्रॉफिट साइड में हो गया हर पैसे का। आपका ट्रू वेरिएबल कॉस्ट कितना है, जीपी कितना है, 25%, मतलब 75% क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट। 100 में से 75 रुपये आप क्या मैंडेट डालोगे, वेरिएबल कॉस्ट अकाउंट में, वेंडर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जितना भी पैसा आया वो ऑटोमेटिक उसमें ट्रांसफर हो गया। बाकी क्या है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का पैसा भी आप इसमें ट्रांसफर कर दो। तीनों मैंडेट डल गए 3 अकाउंट के। जब 3 अकाउंट के मैंडेट, ऑटोमेटिक पैसा आ गया। अब वेंडर का पेमेंट वेंडर के पेमेंट से ही होगा। अभी क्या हो रहा है, 100 रुपए आया, पूरा का पूरा वेंडर को चला जाता है, पैसा कहाँ गया, ईएमआई नहीं चुकती, क्यों, ईएमआई का पैसा तो कहाँ चला गया, वेंडर को। अब ये डिसिप्लिन कैसे क्रिएट हुआ, यू हैव क्रिएटेड डिसिप्लिन बाय क्रिएटिंग 4 अकाउंट्स। 4 अकाउंट्स में पहला क्या हुआ, कलेक्शन, दूसरा वेरिएबल अकाउंट, वेंडर अकाउंट, तीसरा फिक्स कॉस्ट अकाउंट, थर्ड, फोर्थ कैश रिजर्व अकाउंट। 10 टका ऑटोमेटिक प्रॉफिट अलग हो रहा है आपका, देख पा रहे हो आप ऑटोमेटिकली। तो हमेशा आपके बिजनेस में क्या होगा, थोड़ा कैश क्रंच रहेगा स्टार्टिंग में, क्यों, पैसे का जो डिसिप्लिन है ही नहीं ना। तो धीरे 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 आप सोचे वेंडर में 10 लाख रुपए पैसा पड़ा है, 12 लाख चुकाना है, तो 10 ही चुकाओगे ना, है 12 लाख आपके पास, बट कहाँ पड़ा हुआ है, कैश फ्लो अकाउंट में। 2 लाख रुपए कैश फ्लो में पड़ा हुआ है, या फिक्स जैसे फिक्स कॉस्ट अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो आपने क्या किया, डिसिप्लिन बनाया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ऑटोमेटिकली आप देखोगे ना, देखो कुछ चीजें आप करोगे तो समझोगे, उसका कोई साइंस नहीं, यू हैव टू डू इट एंड एक्सपीरियंस इट। जब आप कैश फ्लो देखोगे, आप एट द एंड में आपको दिखेगा मेरा प्रॉफिट पूरा अलग हो गया, मेरा वेंडर पेमेंट जो मेरे को करना है वो मैं कर पा रहा हूँ, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट में हमेशा टाइमली पे, ईएमआई टाइमली जाती है, हर चीज इट विल बी डन in a very smooth manner if you follow this strategy which is called 4 account management system. Big corporates also create 10 accounts उनके, और अब मैं ये बैंक कोई नहीं खोलेगा, आपको क्या बोलना पड़ेगा बैंक को समझ में नहीं आता, रिप्रेजेंटेटिव में बोलेगा ये क्या है 4 अकाउंट, क्या करोगे 4 अकाउंट खोल के, मेरे को तो पता नहीं, आज से पहले सुना ही नहीं कभी। आप बोलो ऋषभ बोथरा का नाम लेना, ठीक है, कोई भी कोटक HDFC आएगा, किसी को नहीं पता तो आप मेरे से कनेक्ट कर लेना, उनको बोलना सर मेरे को कभी, किसी को उनको बोलोगे ना कि सर मेरे को 4 अकाउंट्स खोलना है, वो कभी नहीं खोल के देगा, उसको पता ही नहीं है। उसको ये बोलना मेरे को 3 प्रॉफिट सेंटर खोलने हैं, क्या बोलोगे, लिख लो, मुझे 3 प्रॉफिट सेंटर खोलने हैं। प्रॉफिट सेंटर खोलोगे वो क्या बोलेगा, अच्छा प्रॉफिट सेंटर, वो क्या सोचेगा, प्रॉफिट सेंटर को क्या लगता है 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं,
तो 3 बिजनेस वर्टिकल्स के 3 डिफरेंट अकाउंट खोलेगा, बट इफेक्टिवली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मैनेजिंग योर कैश फ्लो बाय दिस स्ट्रेटेजी। तो वो ऑटोमेटिकली 3 आपके अकाउंट खुल जाएंगे। चौथा कलेक्शन अकाउंट है तो वो भी खुल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योर कैश फ्लोस। कलेक्शन अकाउंट एक ही है, उसी नंबर रहेगा, अलग नंबर होंगे चारों। रिसीविंग में सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, पैसा सिर्फ एक ही अकाउंट में आ रहा है। आउटफ्लो तो आपको करना है ना, पैसा तो आपको ट्रांसफर करना है। आपके डेटर्स को तो जो भी आपको सेल करो उसको तो एक ही अकाउंट है ना, वो तो कलेक्शन अकाउंट में आ ही रहा है आपका पैसा। क्या फर्क पड़ता है? तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए कहाँ कैश रिजर्व अकाउंट में पैसा पड़ा है ना, इनकम टैक्स में कैश रिजर्व क्रिएट किया ना, मेरे को टैक्स भरना है इतना, कहाँ से भरोगे? प्रॉफिट का टैक्स भरते हो ना, तो प्रॉफिट अलग कर दिया, उसका टैक्स भर दो, दिखाने ही पड़ेगा। क्या तकलीफ? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम हवा क्यों बना रहे हैं उस चीज को? प्रॉब्लम यही है, वी आर क्रिएटिंग न्यूसेंस। हम ये छोटी चीज है बट हम क्या हो रहे होए होए होए, ये चीज है ही नहीं, सिंपल, एवरीवन इज डूइंग एंड इफ यू आर नॉट डूइंग बिकॉज यू आर नॉट नोइंग, सो आई एम टेलिंग यू टुडे टू डू इट। तो आपको पता चल जाएगा, इंपैक्ट आपको खुद दिखने लग जाएगा। क्यों? फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ चुका है। नाउ यू आर क्रिएटिंग ए कैश फ्लो मॉडल फॉर योर बिजनेस। अब ये बिजनेस से कैश फ्लो मॉडल से क्या हुआ? आपके प्रॉफिट्स अलग हो गए, आपके फिक्स्ड कॉस्ट टाइमली पे हो रहे हैं, वेंडर का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? वेंडर का पैसा ही नहीं आया, इसलिए नहीं हो रहा ना। कलेक्शन अकाउंट में पैसा वेंडर का आया ही नहीं है तो वेंडर का पेमेंट नहीं हो रहा है, बाकी तो कैश रिजर्व अकाउंट हो रहा है। जी जी, चार अकाउंट का नाम एक ही रहेगा, अकाउंट नंबर अलग रहेगा, ऐसे कब बैंक खुलती है? बोल तो दिया, बैंक ऐसे खोलेगी नहीं, आपको बोलना क्या पड़ेगा? ना बोलेगी पहले। आपको बोले, उसको समझ में नहीं आता ना क्या होता है, उसको बोलना पड़ता है प्रॉफिट सेंटर खोलना है। प्रॉफिट सेंटर बोलोगे तो वो खोल खोल देंगे। देगा। तीनों इतने बिजनेस लोगों को मैं जानता हूँ, मैंने मेरे क्लाइंट्स सूरत में 100 प्लस क्लाइंट मैंने खुलवा के रखे हुए, दे आर वेरी मच इफेक्टिवली कैश मैनेजिंग द कैश फ्लो। ये स्ट्रेटेजी से करोगे तो समझ में आएगा आपको, ये करो, ये स्ट्रेटेजी से आई कैन गारंटी यू आपका 3 साल में, आपका बुरी हालत है ना, बहुत बुरी, तो 3 साल में आपका कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा, विल बी कैश रिच अगेन। अगर थोड़ी ढंग की हालत है 6 महीने में ठीक हो जाओ। प्रॉब्लम इज बिकॉज वी डोंट हैव ए फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन आवर बिजनेस। ये मॉडल समझ में आ गया? तो सेकंड चीज बता दिया मैंने कि भाई यू हैव टू क्रिएट 4 अकाउंट सिस्टम इन योर बिजनेस, जिससे आप अपने कैश फ्लोज को इफेक्टिवली मैनेज करना। थर्ड थिंग क्या करनी है? पहला चीज क्या बोला? बिजनेस बजट बनाना है। जब बजट बना लिया तो क्या होगा? कैश फ्लो का अकाउंट खोल लोगे, पैसा सही से मैनेज हो रहा है। फाइनेंशियल समरी बनानी। ये फाइनेंशियल समरी क्या होती है ये समझो। ये क्या दिख रहा है? फाइनेंशियल समरी। ये क्या है? बजट। जब बजट बनाया तो आपके पास पता चल गया ना, मेरे पास रेवेन्यू कितनी करने वाला हूं अप्रैल महीने में, दिख रहा है आपको? अप्रैल महीने में रेवेन्यू करूं कितना और एक्चुअल किया कितना, वेरिएंस आ गया भाई। 5 करोड़ 88 लाख का मैंने बजट बनाया, एक्चुअल मैंने इतना किया, इतना मेरा वेरिएंस आया। वेरिएबल कॉस्ट नंबर छूट गया, वेरिएबल कॉस्ट इतना था, इतना हो गया, तो जीपी कितना होना चाहिए, कितना हुआ, डिफरेंस पता चल रहा है आपको? तो जहां पे भी वेरिएंस है आपको हर महीने क्या पता चल रहा है, कहां कमी कहां। जब कमी नहीं पता चलोगे तो एक्शन कहां लोगे? कितना नेट प्रॉफिट आना चाहिए, कितना आया, कितना क्रेडिटर होना चाहिए, हो कितना गया। अगर क्रेडिटर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब चुकाया नहीं, डेटर ज्यादा हो गया इसका मतलब पैसा आया नहीं। उग्राणी स्ट्रॉन्ग करो, साल के एंड में स्ट्रॉन्ग करके क्या मतलब, तो चिड़िया चुग गई खेत। आज ही करना है, हर महीने करना है, तभी तो आउटपुट आएगा। दवाई एक, आज आपका हेमोग्लोबिन कम है तो दवाई 1 साल बाद लेके क्या करोगे? दवाई आज लेना है तो ठीक होगा। हर महीने रिपोर्ट करनी है, वर्किंग कैपिटल कितनी लगी, कितनी लगनी चाहिए, लग कितनी गई, ज्यादा लगी कम लगी, क्यों लगी, अंडरस्टैंड करो। जब अंडरस्टैंड करोगे आपको क्या लगेगा,
आप सोचोगे उसके बारे में एक्शन लेने का, अभी तो सोच ही नहीं रहे हो कि मुझे इस पे एक्शन लेना है। तो व्हेन वी आर टेकिंग, वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट कितना कैश फ्लो होना चाहिए मेरे पास, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना होना चाहिए, है कितना। सब बजट बनाया, बजट से एक्चुअल में आ गए, एक्चुअल में इतना इतना है, डिफरेंस ये है। अब आप सोचो, सागर मंथन करो, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल ये मैंने बजट तो बनाया था 60,000 रुपए खर्चा, इस बार 72,000 क्यों आ गया, 12,000 रुपए ज्यादा कैसे लग गए। भाई आप सोचोगे यार ये वो स्टाफ है ना फालतू में लाइट छोड़ के जगा के छोड़ के चला जाता है, एसी की बिल फालतू आते हैं, बंद नहीं करते एसी। साल के एंड में देखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो एसी तो चल गई, स्टाफ ने चला दी। तो हर चीज का पैरामीटर बनता है, हर पैरामीटर को ट्रैक करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट दिखेगा। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से आउट ऑफ जो ये एक्टिविटी करते हैं ना, आउट ऑफ 100 80% बोलो, 80% वेरी बिग नंबर बिकॉज आई हैव देखे हैं मैंने, आउट ऑफ 100 80% पीपल फील रिडक्शन इन देयर कॉस्ट, उनके खर्चे कम हो जाते हैं। 2%, 1.5%, 2, 3% आराम से वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाता है, कहीं कहीं फिक्स कॉस्ट भी कम हो जाता है। रेंट लग रहा है ज़्यादा, तो यार रेंट इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है, फिर आप सोचोगे अरे यार रेंट तो ज़्यादा लग रहा है क्यों, और हमने ये गोडाउन में कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, गोडाउन का भाड़ा बंद कर दोगे, फिक्स कॉस्ट है। बट क्या हो रहा है, अगर ट्रैक नहीं करोगे तो भाड़ा तो लग ही रहा है ना हर महीने। ज़्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है, वी हैव टू ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग, ओनली देन वी कैन क्रिएट रिजल्ट्स। रिजल्ट तो क्रिएट नहीं होते। कैश इन हैंड कितना होना चाहिए, कैश फ्लो कितना होना चाहिए, ये सारा क्या होता है वेरिएंस, और वेरिएंस को हम ट्रैक किया। और जब हमने क्या किया, तीसरी चीज करी, प्रिपेयर फाइनेंशियल समरी, जो मैंने आपको बताई ये ऐसी फाइनेंशियल समरी प्रिपेयर करनी है और उसको इंप्लीमेंट करनी है। एंड फोर्थ एंड फाइनल चीज क्या करनी है, मेक योर बिजनेस डैशबोर्ड, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया। हर महीने टू महीने ट्रैक करो क्या है नंबर्स में, जीपी कितना है, आरओआई कितना है, इन्वेंट्री कितना आ रहा है, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लग गई तो क्यों लग गई, ये समझना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लग गई तो क्यों लग गई, डेट इक्विटी, पहले बात है नंबर समझने की, पहले ये समझो ये बोल क्या रहा है, उसको सीखो और उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो। जब ये रोज एक्सरसाइज करोगे ना, हर महीने टू महीने, महीने टू महीने, महीने टू महीने, जब ये एक्सरसाइज करने लग जाओगे ना, तो आपको बताओ एक चीज दिखेगी, क्या समझ में आएगा, आपको ये लगेगा कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। डॉक्टर पहले नाड़ देख के बताते थे, और पहले ऐसे देख के बता देते थे 10 साल 15 साल पहले कि भाई तेरी क्या बीमारी है। आज के डेट में डॉक्टर रिपोर्ट के बिना बात करता है, रिपोर्ट लाओ, कुछ भी और रिपोर्ट लेके आओ, क्यों, उसको यही दिखता है, रिपोर्ट दिखाओ बाकी काम करो। बिजनेस ओनर जिस दिन ये भाषा बोलने लग गया, वो अकाउंटेंट से ये बात करने लग गया, बेटा मेरा वर्किंग कैपिटल कितना है, अकाउंटेंट को झक मारा तो बना के देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट आ गई है ना। अब अकाउंटेंट को नहीं आता तो सीखेगा वो, अभी तो सीख ही नहीं रही, बिजनेस ओनर की जरूरत ही नहीं है। अब ये कौन कर रहा है, ये एक्सरसाइज कौन कर रहा है, सवाल ये, जिसका रेवेन्यू 20 करोड़ से ऊपर है, उसको करनी मिनिमम चाहिए, क्यों, वो अपने आप को स्केल कर रहा है, वो तो करना है, उसको आता ही नहीं है पहली बार, तो ये वाली एक्सरसाइजेस वो कर रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका 20 करोड़ से नीचे है ना, वो नहीं कर रहे, तो वैसे भी ग्रो नहीं कर रहे, क्यों, उनको नंबर से नहीं पता अपने बिजनेस के। तो एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस बिजनेस डैशबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट। एक रिपोर्ट हर बिजनेस ओनर को होनी चाहिए, नहीं है तो वो बिजनेस में राइट डिसीजन ले ही नहीं रहा। और कोई अगर ये बोले, और मेरे को मतलब कोई मेरे पास आता है और वो बोलता है ऋषभ एवरीथिंग इज सक्स, मतलब काम कुछ नहीं हो रहा है, बिजनेस इज ए फेलियर, पैसा नहीं आ रहा है, उसका कारण बिजनेस नहीं है, वो खुद है, क्योंकि ये नंबर उसने कभी मांगे ही नहीं है, उसको खुद को नहीं पता, ना उसने कभी कोशिश करी है इसको समझने की। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आज आप आए हो, आप इतना समय लेके आए हो, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको ये समझाऊँ। आप आज कुछ लेके जाओगे यहाँ से, मैं बोलूँ, मैंने एक चीज़ बोला, आप कुछ आज सीखोगे, आप आज शायद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने बिजनेस में, बट अगर आपको आज पता लग गया कि ये चीज़ करनी होगी तो आप एफर्ट जरूर लगाओगे। व्हाट यू डोंट नो उसके ऊपर, बट यू नो
जो आपको चीज़ पता नहीं है बट आपको पता है कि वो पता नहीं है, तो उसके ऊपर आप एक्शन ज़रूर लेते हैं। ये वही चीज़ आज मैंने आपको बता दी है। 4 चीज़ें आपको करनी है। ये अगर काम करोगे तो क्या होगा, आपके बिजनेस के कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, आपके बिजनेस में एक चीज़ें आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी एंड यू विल बी एबल टू टेक राइट एंड उसको मैं बोलूँ तो राइट डिसीजन भी कह सकते हो आप उसको, कि भाई एक सही और एजुकेटेड डिसीजन, एक्यूरेट डिसीजन। तो ऐसा है ना, एक्यूरेट तो आ जाएगा बट राइट और विथ नंबर्स डिसीजन लेते हैं। आज इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट्स में, किस बेसिस पे करते हो, नंबर्स के बेसिस में ना। कोई टिप के बेसिस में करते हो तो बेवकूफ़ी है ना। कितने लोग टिप के बेसिस में करते हैं और कितने कमा लिए टिप के बेसिस पे। हम तो बिजनेस टिप पे चला रहे हैं, तो यही हो रहा है ना, बिजनेस टिप्स पे चला रहे हैं। कुछ हो जाए तो अच्छी बात, टिप मिल गई, बट इफेक्टिव नंबर्स इज द नंबर गेम। ये नंबर ही देखने होते हैं, बट अगर नंबर नहीं देखोगे तो क्या होगा, आप ना राइट डिसीजन लोगे, ना राइट समझ है, और वो क्रिएट कर लोगे, आप खुद खुश हो जाओगे और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। एवरी बिजनेस ओनर हु इज ग्रोइंग, मैं आज मैं बहुत सारे कंपनी के साथ काम करता हूँ, 3-4 कंपनी से IPO भी आ चुके हैं। आज उनके साथ हम लोग ये सब कहानी नहीं करते, अकाउंटिंग में डेटा एंट्री नहीं हुई, वो नहीं हुई, बैलेंस शीट क्लोज नहीं, ये सब माता बड़ी डिस्कशन का टॉपिक नहीं होता है। टॉपिक डिस्कशन ये होता है कि नंबर्स बता क्या बोल क्या रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को वही नंबर चाहिए। आज स्टार्टअप है, आज कोई भी आता है वो इन्वेस्ट क्यों करता है, सबसे नंबर दिखा भाई, नंबर 0 है तो क्या है, इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर ही नहीं आने वाला बॉस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस, वी हैव टू क्रिएट सच डैशबोर्ड्स, वी हैव टू क्रिएट सच फाइनेंशियल समरी, बजट्स। हर प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है किस तरीके से आप करोगे। अगर आप कर लोगे तो वेरी वेल गुड एंड यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हिच बॉइल्स डाउन टू मी एक लास्ट टॉपिक मैं थोड़ा समझाना की कोशिश करता हूँ। लोग अपने बिजनेस को सीरियसली लेते नहीं, ये भी एक बहुत, लोग बोलते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट दे आर रियली नॉट सीरियस अबाउट द बिजनेस। इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं होती, उसका कारण ही बताती, बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये थोड़ा समझना, मतलब किसी का हो गया क्या मतलब, ऐसा होगा कि भाई ऊपर से जा रही है चीज़ें। यस शैलेश जी, बिजनेस डैशबोर्ड में जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे अकाउंटिंग प्रोग्राम में आता है, बिजनेस डैशबोर्ड, लेकिन समझ नहीं पड़ती कि क्या कहना चाहिए। पहली चीज़ बता दीजिए, आपकी अकाउंटिंग तो गलत हो रही होती। कभी भी अगर मैं कह रहा हूँ अकाउंटिंग सही से अगर हो रही होती, वी कैन हैव 10 मिनट्स Q&A, उसके बाद मैं ये बता दूँ तो आपको लोगों का थोड़ा इंट्रैक्शन अभी तो बोरिंग हो रहा होगा कि भाई मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। लेट मी फिगर आउट विद सर्टेन क्वेश्चंस। आपका एक क्वेश्चन है, बिजनेस के अंदर मेरा 4th मिस्टेक क्या बोला मैंने, ओवर रिलायंस ऑन अकाउंटेंट्स। वो अगर हर महीने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं करता है ना, तो आपको हर महीने रिपोर्ट सही से मिलेगी। आपने अपनी इन्वेंट्री की राइट वैल्यू दी उसको, नहीं देते लोग, दे देते हैं, कई लोग देते हैं, कई लोग नहीं देते। जब इन्वेंट्री की राइट वैल्यू दोगे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर महीने इंटरेस्ट की एंट्री है, लोन लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन, खर्चा कब डालते हैं, 31 मार्च को। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, हर महीने क्या एंट्री डालते हो, नहीं डालते। डेप्रिसिएशन क्या हर महीने डालते हो, नहीं डालते। ब्रोकरेज सेल करते हो, ब्रोकरेज की तो कॉस्ट लगी रही है ना, ब्रोकरेज का एक्सपेंस क्या हर महीने अप्रूव करते हो, नहीं करते। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, बिकॉज वी अकाउंटेंट को हमने कभी मांगा ही नहीं। हम ऐसे फाइनेंशियली और ओनर हम लोग अवेयर नहीं है कि ये सब चीज़ भी करनी होती है, तभी तो राइट वैल्यू आएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, आप खुद सीख जाओ। पहले आप सीखोगे तो आप मांगोगे, जिस दिन आप नहीं सीखोगे तो आप मांगने वाले भी नहीं हो। और CA इज ए बिजी मैन, वो आपको नहीं बताने वाला, बस आपको उससे पूछना पड़ेगा, वही बताएगा। बिजनेस डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर भी दे देता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, जैसा डालोगे वैसा बाहर आएगा। कचरा डालोगे कचरा ही रिपोर्ट बाहर आएगा, सही चीज़ डालोगे तो सही रिपोर्ट बाहर आएगा। डैशबोर्ड में ये जो पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
उसके लिए तो मैंने HECI को आज बोला, सर वी नीड टू क्रिएट समथिंग फॉर दिस, आई वांट टू क्रिएट फाइनेंशियल लिटरेसी इन सूरत, मेरा मिशन है। मैं कोर्स भी बना रहा हूँ जिससे एज मेंबर्स को, बिजनेस ओनर्स को पता चले कि भाई एक्चुअल में नंबर है तो क्या मतलब है उसका, उसको देख के मैं कैसे डिसीजन लूँ। तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो तो सीखनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए तो इनिशिएटिव HECI से लो, आप लोग आगे बताओ उनको, विजय भाई को विजय भाई को बताओ, रमेश भाई को बताओ, आपकी इनिशिएटिव लो एज ए ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट फाइनेंशियल लिटरेसी इन दिस। आप कोर्सेज बनो, मैं हेल्प करूँगा आपको कोर्स बनाने में। तो उसके वजह से लोग जुड़े उस कोर्स में, सीखें, अंडरस्टैंड करें, सो दैट दे कैन डू राइट डिसीजन। मैं बोल दिया, आज मैंने सिंपल एक ज्ञान दिया है, इम्प्लीमेंटेशन तो एक दिन में तो इतना मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ, इतना ही टाइम मिला है मेरे को। बट मैंने अगर आज बता दिया ना, नाउ इट इज़ योर ड्यूटी, तो इसके अंदर घुसो, उसके अंदर सीखो। स्विमिंग तो मैंने बता दी, स्विमिंग आती नहीं है, अब आपकी ड्यूटी है कि स्विमिंग सीख के कोच हायर करके स्विमिंग सीखो। Basically in Surat is one of the reason people are not doing business mainly in white, they mainly doing black. Is it one of the reasons? एक सेकंड, White for वाइट ब्लैक ये सब है ना। देखो एक पब्लिक फोरम में बोलना है, मैं आई शुड नॉट स्पीक ऑन दिस, बट वाइट ब्लैक आपका प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर बिजनेस। फर्स्ट अंडरस्टैंड, मेरे को, मैं ऐसा बिजनेस ही नहीं करूंगा जिसमें ये चीजें हों। आपने डिसाइड किया ये प्रॉब्लम चुनना, चुने। नाउ क्वेश्चन है वाइट या ब्लैक, है तो अकाउंटिंग की। अगर एक आदमी 2 फर्म चलाता है तो उसकी तो वाइट की फर्म चलाता है, तो वाइट की अकाउंटिंग तो कर रहा है। अगर आपकी ब्लैक की फर्म, आप अकाउंटिंग कर लो, आप करते नहीं हो ना, प्रॉब्लम है। क्यों, मैं कैसे कर लूँ, चोपड़े दिख जाएंगे। इट इज योर लुक आउट, हाउ यू हैव टू मैनेज। करोगे, करना तो पड़ेगा, ब्लैक हो या वाइट। अकाउंटिंग होती है, रिपोर्ट होती है। यहाँ ब्लैक वाइट कुछ है, नंबर बोल रहे हैं बॉस, ब्लैक वाइट तो आपके दिमाग में। सर कोई बिजनेस में कैपिटल जो लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उसमें जो वर्किंग कैपिटल जो यूज़ होता है वही कैश फ्लो होता है, फिर कभी उसमें प्रॉफिट में से जनरेट करा हुआ है। समझा नहीं? ये अपन बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें जो प्रॉफिट होता है वही अपन फ्री कैश फ्लो समझ सकते हैं कि फिर उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ता है, रिजर्व करना पड़ता है। प्रॉफिट अलग है, कैश अलग है, पहली चीज। 4 अकाउंट सिस्टम समझ में आ गया। जब माल आया, पैसा आया, प्रॉफिट अलग कर दिया आपने 4 अकाउंट से, तो जो प्रॉफिट का जो कैश था वो आपने अलग कर दिया। अब वो कैश का क्या करोगे, बिजनेस में ही डालना होता है, अपनी वर्किंग कैपिटल में नहीं डालना होता है कैश, वो अपने बिजनेस ग्रोथ में डालना होता है। आपको अगर कैश अलग कर दिया तो अब उस पैसे का, क्योंकि आपको बिजनेस की जरूरत नहीं है ना, आपका साइकिल तो वैसे भी दूसरे अकाउंट से चल जाएगा। आपने प्रॉफिट ही तो अलग किया है, और प्रॉफिट को अगर री इन्वेस्ट करोगे तो ग्रोथ एक्टिविटी में इन्वेस्ट करो ना, मशीन डालो, कुछ भी डालो। यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी फ्रॉम टू अदर सोर्सेज थ्रू व्हिच यू कैन ग्रो योर बिजनेस। रेगुलर साइकिल में वो पैसा कहाँ क्यों यूज करोगे? वो फ्री कैश फ्लो हो गया ना, वो फ्री कैश फ्लो है, वो आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट आपको दिख गया अलग। वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, मैं वही कह रहा हूँ। वो डिसिप्लिन बिजनेस ओनर कैसे लेके आएगा भाई, फॉलोइंग 4 अकाउंट मेथोडोलॉजी, एंड और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। और जो नहीं फॉलो कर रहा है वो प्रॉब्लम ही है। हर एमएनसी अगर आप देखोगे, किसी लिस्टेड क्लाइंट्स का किसी का उठाओगे ना, जो फाइनेंशियल गुड कर रहे हैं ना, आप अपने इंडस्ट्री का उठा लो, हर किसी का भी एक बैंक अकाउंट नहीं, उसके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, बट ग्रुप अंडर 1 अकाउंट होता है। वो अंदर दिखता नहीं है, रिपोर्ट्स के अंदर नहीं आता। वो एक स्टडी होती है, उनको पता है कि वो अंदर ग्रुप अंडर मेनी प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं, उसको इस तरीके से मैनेज किया जाता है। सेल्स वाला सेल्स कलेक्शन ले रहा है, कलेक्शंस का उनका फिक्स है, बजट के हिसाब से ऑटोमेटिकली उतना ट्रांसफर हो रहा है। वेंडर पेमेंट परचेज वाला ऑटोमेटिक कर रहा है, उसको उसके फंड एलोकेटेड है। ये मैनेजमेंट है। हम वो मैनेजमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल है ना, मैंडेट ही देना है बैंक को। बैंक बोले मैंडेट दे दो, मैंडेट दे देगा बैंक। हमने बोला ही नहीं, कभी मांगा ही नहीं, तो बैंक ने भी नहीं दिया। खुद प्रोफेशनल क्यों? एक बात बताओ सर, आपने ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला है वो सिंपल वे में समझाओ आपको। प्रोफेशनल बिजनेसमैन फर्क, प्रोफेशनल बिजनेसमैन से यही फर्क है, उसका टीबीसी नहीं है।
ट्रू वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता प्रोफेशनल का, और बिजनेसमैन का जो माल बेच रहा है वो सब वेरिएबल कॉस्ट होता है। इतना ही फर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोफेशनल को 4 अकाउंट की जरूरत नहीं है, उसको क्या चाहिए, 3 अकाउंट्स। सारा का सारा पैसा जो आएगा कलेक्शन अकाउंट में, प्रॉफिट आपका अलग हो गया, फिक्स कॉस्ट में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ज़्यादा होगा। एक प्रोफेशनल का 50% मार्जिन नहीं कमा तो प्रोफेशनल थोड़ी ना है, तुम सर्विस इंडस्ट्री हो, 50% आप अपने प्रॉफिट अलग कर दो, 50% आप फिक्स रिजर्व में डालो, फिक्स कॉस्ट के अंदर, हो गया आपका 3 अकाउंट। प्रोफेशनल का टीवी से नहीं। आपका क्या क्वेश्चन था? आप जो बता रहे थे वेरिएबल कॉस्ट और जीपी और वेरिएबल कॉस्ट का, तो वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग जरा सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट वही कॉस्ट होता है अगर वो खर्चा जो मुझे माल बेचने के लिए चाहिए, अगर मुझे लैपटॉप बेच रहा हूँ तो लैपटॉप खरीदना पड़ेगा तो ही बिकेगा, तो लैपटॉप खरीदना वेरिएबल कॉस्ट हो गया। बट अगर लैपटॉप बेचूंगा ही नहीं तो मेरे को क्या लैपटॉप खरीदना पड़ेगा? नहीं, हम लैपटॉप नहीं खरीदेंगे, जब ऑर्डर ही नहीं है तो खरीदेंगे ही क्यों? तो वेरिएबल कॉस्ट हुआ जीरो। जो खर्चा होगा सेल होने पर, अगर माल बेचूंगा तो ही वो खर्चा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, वो वेरिएबल कॉस्ट है। जो कैश रिजर्व वाला है वो अपना खुद का मनी एक्स्ट्रा डाला हुआ, आप जो कमा रहे हो पैसा वही है, वही है। ना। आपने 2 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट स्टार्टिंग में आप थे क्या? स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए प्रॉफिट था ना, 2 करोड़ 40 लाख, वो निकालना होता है ना बिजनेस में, उसको दिखा नहीं, क्यों? वर्किंग कैपिटल में लग गया वो पैसा। अब वो पैसा क्या है, आपने 20 लाख करते करते अलग कर दिए, और वो पैसा आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आ गए। अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आ गए तो क्या करो, आप अपने हर जगह वेंडर पेमेंट में कड़कनेस आ रही है, टाइटनेस हो रही है, तो आप परचेज ही वैसे ही टाइटली करोगे। जस्ट एग्जांपल दीजिए, वो जो आपने बताया ना खरीदा बेचूंगा ऐसा नहीं, वो वेरिएबल एक्सपेंस का कुछ एग्जांपल दीजिए उसका। कमीशन, परचेस कॉस्ट गनी लो साइड। वेरिएबल कॉस्ट टेक्सटाइल, आप कौन सी इंडस्ट्री में? आप कौन सी इंडस्ट्री में? मैं ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ, मैं कोई आप कौन सी इंडस्ट्री में, आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं तो अभी शेयर बाजार ट्रेडिंग का काम आप शेयर बाजार ट्रेडिंग करते हो? आप शेयर बाजार ट्रेडिंग करते हो? आपका अगर आपका ये बिजनेस होता, आप तो भी फ्रीलांसिंग कर, मतलब आप अपने हिसाब से आप लेवा बेची कर, अगर ये बिजनेस होता आपका तो आपका सेल होता, आप क्या करते, ब्रोकरेज चार्ज कर रहे होते अपने क्लाइंट से, तो वो आपकी सेल हो गई, ठीक है। और जो एक्सपेंस आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी की एजेंसी ले रखी है, आनंद राठी की ले रखी है, जरूर किसी की भी ले रखी है, लाइन ले रखी है, तो वो लाइन को आपको ब्रोकरेज चुकाना पड़ता बेस्ड ऑन जितना ट्रांजैक्शन मैं करूंगा उतना आपको चुकाना पड़ेगा। तो वो निर्भर किसके ऊपर करा, वो कस्टमर के, जितना ट्रांजैक्शन होगा उतना ही चुकेगा ना, तो वो आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट होगा। अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो आपका कॉस्ट है नहीं, दिस इज वेरिएबल। एनी मोर? जो हम रिटेलिंग करते हैं, वी आर डूइंग इनटू रिटेलिंग, सो ऑर्डर आता है तभी हम आगे ऑर्डर देते हैं। तो अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट तो हो गया ना, आज तुमने माल ऑर्डर लिया, तुमने माल खरीदा, अच्छा है ना, वही तो तुम्हारा कॉस्ट है। माल खरीद के तो बेच रहे हो, तो अच्छा वही वेरिएबल कॉस्ट है तुम्हारा। 100 रुपये का माल खरीदा, 70 रुपये तुम्हारा जीपी है, मतलब 70 रुपये कॉस्टिंग है, तो 70 रुपये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है, माल का कॉस्ट हो गया। મિત્રો હજુ 2-3 સવાલ પૂછવાય તો છે આપણી પાસે ટાઈમ, સો હજુ સ્ટીલ યુ કેન આસ્ક એની ક્વેશ્ચન્સ ટુ। बिफोर दैट एक चीज और बतानी थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं रह गई थी, मैं ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें थोड़ा डैशबोर्ड है, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करो कि क्या एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी है डैशबोर्ड के ऊपर। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट पता है सबको? जीपी पता चल गया, बताने की जरूरत है? आई थिंक नो। नेट प्रॉफिट पता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जीपी जरा बता दीजिए, जीपी को थोड़ा समझा दीजिए। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी, ठीक है।
ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, लास्ट में बता देता हूँ, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले बता दूँ। तो ये समझो आप, ये बैलेंस शीट होती है, दिख रही है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड क्या बोलता है? लायबिलिटी। राइट साइड क्या बोलता है? एसेट। उसका लायबिलिटी का दूसरा नाम भी क्या होता है? सोर्सेस। कि ये सोर्स ऑफ फंड है और ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है। कि आज मैंने सबसे पहले अगर धंधा चालू किया तो कैपिटल मेरी 3 करोड़ की मैंने कैपिटल डाली, ठीक है। मैंने लोन लिया 4 करोड़ का और क्रेडिटर मेरे 1 करोड़ के, ठीक है। और मैंने उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज किया? लैंड खरीदने में, मशीनरी खरीदने में, कार खरीदने में, इन्वेस्टमेंट करने में, इन्वेंट्री में ब्लॉक किया, डेटर्स में ब्लॉक किया, कैश एंड बैंक में ब्लॉक किया। यही हुआ। पर अगर आप देखोगे सबसे बड़ी विडंबना क्या है, ये जो सोर्सेज ऑफ फंड दिख रहे हैं आपको, ये हर चीज का कॉस्ट है। टर्म लोन 12% में मिलता है, 10%, 8%, 9%, उसका कॉस्ट आता है। क्रेडिटर, उसका भी कॉस्ट होता है। कॉस्ट कैसे होता है? आज अगर माल खरीदते हैं क्रेडिटर से, अगर आप इसको कैश डिस्काउंट दो ना 2%, आज पैसा तो 2% कैश डिस्काउंट देता है, तो आप सोचो वो भी तो कॉस्ट, अगर हम नहीं दे रहे उसको कैश डिस्काउंट, तो इट इज ऑल्सो कॉस्ट विच वी आर लूजिंग, करेक्ट। तो इफेक्टिवली साल का 24% तो उसका भी कॉस्ट है जो हम अकाउंट फॉर करना चाहिए। खुद की पूंजी सबसे बड़ी चीज है। खुद की पूंजी का कोई कॉस्ट जोड़ता नहीं है। क्यों नहीं जोड़ता? तो फ्री की है ना, खुद की है। अगर आपका धंधा, आपका पैसा है, अगर मैं बोलूँगा सर मेरे धंधे में इन्वेस्ट कर दो, आप क्या बोलोगे? कितना टका रिटर्न देगा? देगा? और मैं आज स्टार्टअप के ज़माने में क्या बोलेगा? मुझे तो मिनिमम 400% रिटर्न चाहिए, पैसा डालूंगा तो 400% रिटर्न, तो वैल्यूएशन आना ही चाहिए, करेक्ट। हम अपनी बिजनेस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों नहीं जोड़ते? हम इसको वैल्यू क्या करते हैं? जीरो। ये हमारे बिजनेस का क्या है? जीरो वैल्यू करते हैं। भाई खुद के पैसे का ब्याज जोड़ा है? नहीं जोड़ा। क्यों? बैलेंस शीट में खुद के पैसे का तो ब्याज लगता ही नहीं है, दूसरों को पैसे का ब्याज लगता है। तो आप देखोगे हर सोर्स ऑफ फंड का लायबिलिटी जितनी भी है, ये जो 10 करोड़ रुपए दिख रहे हैं टोटल, एक एक चीज का क्या दिख रहा है आपको? कॉस्ट है। और वो कॉस्ट कभी भी छुट्टी नहीं लेती, 12 महीने लगती है। लोन वाला कभी छुट्टी देगा आपको? आज संडे है, आज तुम्हारा ब्याज नहीं, ब्याज माफ देगा? कभी नहीं देगा। हर दिन का कॉस्ट है। बट खतरनाक चीज क्या है? एप्लीकेशन। जब ये पैसा आप लैंड बिल्डिंग में लगाते हो, वो रिटर्न क्या उतना देता है? इफेक्टिवली आप पहले सोर्स समझ लो। कैपिटल में इफेक्टिवली मैं क्या मानता हूं, अगर मिनिमम 40% अगर आप रिटर्न नहीं कमा रहे हो ना अपने कैपिटल का, तो वो बिजनेस ही नहीं करना चाहिए। अगर 40% अगर रिटर्न नहीं कमा रहे हो कैपिटल का, खुद की पूंजी का, तो वो बिजनेस वायबल नहीं है। प्रैक्टिकल टर्म्स में यू शुड नॉट डू दैट बिजनेस। अब सवाल है कि क्यों, अब मैं हाउ एम आई अराइविंग टू दैट फिगर, उसका भी साइंस है, आप टाइम नहीं दोगे इतना। तो इफेक्टिवली कैपिटल का भी 40% रिटर्न है, टर्म लोन का 12% है, क्रेडिटर का 18% है, और जो प्रॉफिट हर साल आप कमा रहे हो धंधे में, उसका भी तो धंधे में दे रहे हैं ना प्रॉफिट, उसका भी तो कॉस्ट है जो आप धंधे में रख रहे हो, तो उसका भी तो लगभग आप मान के चलो 40% रिटर्न ही होगा, खुद का ही पूंजी है तो उसका भी रिटर्न होगा। इफेक्टिवली अगर देखोगे ना, कॉस्ट कितनी है? 3 करोड़ का 40%, 1 करोड़ 20 लाख, 20 लाख 2 करोड़ का 40% 80 लाख, 4 करोड़ का 12% 48 लाख रुपए, 10 लाख का 18% 18 लाख, टोटल आपके 10 करोड़ की कैपिटल की कॉस्ट होती है 2 करोड़ 66 लाख। मतलब कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 26% रहती है आपके बिजनेस में, अगर आप धंधा करते हो। अगर आप धंधे में अगर 26% ज्यादा रिटर्न नहीं कमा रहे हो, टोटल 10 करोड़ की वर्किंग 10 करोड़ पैसा, तो बिजनेस फेलियर है। ये आप समझ गए? तो एवरीथिंग कम्स विद ए कॉस्ट। अब एप्लीकेशन में आ जाता हूँ। ये पैसा आप कहाँ डाल के बैठे हो? समझो कोई लैंड डाल में बैठा है, क्या लैंड आपको 26% रिटर्न दे रहा है? कौन सी लैंड दे दी आपको? हर साल 10% ग्रो हो जाए, वही बड़ी बात है। मशीनरी क्या रिटर्न दे दिया? गाड़ी इन्वेस्ट कर दी, गाड़ी में क्या रिटर्न दिया? आप खाली ये करना आज घर जाके कि आपकी बैलेंस शीट उठाना, बैलेंस शीट उठा के जो पैसा आपने खुद का है
और वो कहाँ कहाँ लगाया है, खाली वो देखना और वो अमाउंट के आगे ये लिखना कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग परफॉर्मिंग एसेट है? नो, इट इज एनपी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा आपको बिजनेस में। मशीनरी परफॉर्मिंग एसेट है? यस, इट इज ए परफॉर्मिंग एसेट। कार परफॉर्मिंग एसेट है? नो, इट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्मिंग एसेट्स है? नो, इट इज नॉट। हो सकता है कुछ हो सकता है नहीं हो, तो मैं चलो मान लेता हूँ परफॉर्मिंग एसेट्स। इन्वेंट्री, यस। अगर आप देखोगे ना, एज पर साइंस 50% ऑफ योर कैपिटल इज परफॉर्मिंग एसेट, 50% इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अब आपको रिटर्न कितना जनरेट करना है? 26%, 10 करोड़ का। बट 50% तो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में लगा हुआ। रिटर्न तो कैसे जनरेट? इफेक्टिवली बिजनेस में रिटर्न कितना जनरेट करना चाहिए? दिस मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये कब होगा? जब पूरे साल काम करेगा। आपको कब लगा कि भाई आपने अगर किसी का माल उधार में दिया है, लेटर्स में दिया है, वो आपको ब्याज देगा संडे का भी? वो भी नहीं देगा। इफेक्टिवली आपका परफॉर्मिंग एसेट है ना, वो भी साल में 2/3 ही काम करता है। परफॉर्मिंग एसेट भी 2/3 काम करता है। तो 53% रिटर्न नहीं है। रिटर्न कितना है? अराउंड 68% के आसपास है। अगर धंधे में 68% का अगर रिटर्न नहीं कमा रहे हो ना, पूरा कैपिटल का, सेल का नहीं, पूरे कैपिटल का अगर 58% रिटर्न नहीं कमा पा रहे हो तो प्रॉब्लम है ना। क्यों? हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स सही से नहीं। देखो, ये आज मैंने टॉपिक लिया, इट इज ए वास्ट टॉपिक। इसका कोई मतलब बहुत बड़ा नंबर है, हर कोई समझ भी नहीं सकता। पहले चीज लिटरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। कोई नंबर्स देख के तो बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इतना पावर होता है नंबर्स के बेसिस पे। वो नंबर सीख जाओ अगर आप, तो यू कैन क्रिएट वंडर्स इन बिजनेस। तो आज विथ दिस थिंग आई एम कंक्लूडिंग माई टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, डैशबोर्ड। बिफोर दैट आई ऑल्सो वांट टू से कि अगर आपको अपने बिजनेस में फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, फाइनेंशियल, तो आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड ए कम्युनिटी, जहाँ पे आप, वो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। तो हम लोग बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी लर्निंग्स उसके अंदर शेयर करते रहते हैं। तो इफ़ यू बिकम पार्ट ऑफ इट, आप उस कम्युनिटी के अंदर जुड़िए। आप जुड़ के आप वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अपने। तो एज आवर ऑर्गेनाइजेशन विल हमेशा हम आपको उस क्वेश्चन का ट्राई करेंगे, उसका क्वेश्चन सही से आंसर दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कि ये क्वेश्चन मैं पूछ नहीं सकता, यू कैन ऑल्सो वहाँ पे बुक एक 1-to-1 कॉल ऑल्सो विथ मी, जहाँ पे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड वी कैन कम। तो दिस इज माई गिफ्ट टू दी सोसाइटी कि आप हर फ्राइडे को मैं ये करता हूँ। हर फ्राइडे 4-2 घंटे का मेरा सेशन होता है, जहाँ पे मैं 15-15 मिनट के स्लॉट्स होते हैं। आप मेरे साथ इस कम्युनिटी के जरिए आप मेरे से जुड़ सकते हो, जहाँ पे वी कैन, आपके जो प्रॉब्लम्स है वी ट्राई टू, दिस इज माई गिफ्ट। और मैं हर कोशिश करता हूँ हर हफ्ते एक मास्टर क्लास लेने की, छोटे छोटे फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर, जिससे वो अवेयरनेस क्रिएट हो। तो यू कैन ज्वाइन दिस कम्युनिटी एंड बी पार्ट ऑफ इट एंड गेट योर बिजनेस टू योर नेक्स्ट लेवल। थैंक यू। ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लो। एंड नाउ एंड बिजनेस रेशियोज। बिग स्लाइड, कौन सा? वो वाले स्लाइड बड़ा, ये वाला। ये मेरा नंबर आप सेव कर सकते हैं। एंड दिस इज द पार्ट कम्युनिटी है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, QR लिंक है। अगर नहीं ज्वाइन कर रहे तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए हाई, तो मैं उसमें आपको जोड़ भी लूँगा। तो यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल अपडेट्स की कम्युनिटी है, जहाँ पे अपने बिजनेस रिलेटेड चैलेंजेस भी डाल सकते हैं। तो एज ए कम्युनिटी वी ट्राई टू सॉल्व दिस। ये पार्ट ऑफ डिस्कशन नाउ कम्स आपका बिजनेस डैशबोर्ड। ROI, सर ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 40% के नीचे धंधा नहीं करना। ये स्टैंडर्ड है कि वो तो आपको बिजनेस, वो इफेक्टिवली कोई भी बिजनेस 40% से, वो स्टैंडर्ड है, वो मैंने बनाया, उसका भी साइंस है। कभी आप मेरे से 1-to-1 के तो मैं उसका साइंस ही बताऊंगा। 40% इज द बेयर मिनिमम
अगर आरओआई नहीं है तो धंधा मत करो। खुद के पैसे का रिटर्न नहीं है, धंधे का नहीं, उसमें लोन भी होता है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल, मतलब इट इज समथिंग, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल इलिटरेसी। तो आरओआई, इन्वेंट्री टर्न, ये तो समझ में आ गया। इन्वेंट्री टर्न कितनी बार घूम रहा है धंधे में, वो समझ में आ गया। इसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम? अनिल जी समझ में आया? करंट रेशियो, आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म फंड्स लॉन्ग टर्म में तो यूज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है। शॉर्ट टर्म फंड्स लॉन्ग टर्म में तो यूज नहीं कर रहे हो, करंट रेशियो का मतलब ये है। अगर आप करंट रेशियो लेस देन 1 है तो बहुत खराब है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपना पैसा, शॉर्ट टर्म का पैसा, ओडी का पैसा आप लैंड एंड बिल्डिंग ऐसी जगह डाल रहे हो जो 1 साल के अंदर पैसा नहीं आना, बट ओडी तो 1 साल में चुकानी है। इसका मतलब ये है। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का मतलब क्या है, इन्वेंट्री बहुत बार क्या होती है कि बिकती नहीं है, तो जो करंट एसेट होता है उसके अंदर ये इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो क्विक रेशियो 1 होना चाहिए, 1 से अगर कम है तो आप खराब है। डेटर्स डे समझ में आ गया, कितने दिन मेरे पैसे डेटर्स में फंसे रहते हैं, ये क्लियर है। इन्वेंट्री डेज क्लियर है, कितने दिन की मेरे पास इन्वेंट्री रखी हुई है। क्रेडिटर डेज क्लियर है, कितने दिन में मैं क्रेडिटर को चुका रहा हूँ, ये क्लियर है। CCC, कैश कन्वर्जन साइकिल, धंधे में आज मैंने पैसा डाला है वो वापस मेरे घर में कितने दिन में आ रहा है, ये क्लियर है। अब ये आपके बिजनेस में अलग हो सकता है, सबके बिजनेस में अलग हो सकता है। क्यों? हर का वर्किंग कैपिटल साइकिल अलग है। मैंने इससे स्टार्टिंग में बताया कि उस आदमी ने फिजिबिलिटी स्टडी करी, फिजिबिलिटी स्टडी करके उसने क्या बोला कि मेरे ये पैरामीटर्स होने चाहिए, तो आपका वही होना चाहिए। तो प्लान आपने अपने हिसाब से बनाया, उसके हिसाब से अपने धंधा चालू किया। अब बिगड़ रहा है तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा ना, क्यों बिगड़ रहा है, तो ये वो रिपोर्ट बोल रहा है। वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया, धंधे में वर्किंग कैपिटल 3 करोड़ लगी है, ज़्यादा क्यों लगी। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, पैसा खुद का ज़्यादा है या लोन का ज़्यादा लेके बैठे। सेल समझ में आ गई। जीपी, ये परसेंटेज में बात कर रहा है, ये वैल्यू से बात कर रहा है। नेट प्रॉफिट वैल्यू से बात कर रहे हैं। कैश प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट समझ में आया। 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, वो 1 करोड़ में घर में कितना रखा, रियलाइज कितना कर लिया 1 करोड़ में। डेटर इन्वेंट्री में फंसा वो प्रॉफिट नहीं है, वो जेब में कितना आ गया है, वो कैश फ्लो रिजर्व अकाउंट, 4 अकाउंट जो बनाया है उसके अंदर वो 4th अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, वही तो प्रॉफिट है, बाकी तो भ्रम है। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना रखा हुआ है, और आज आपके बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है। हर महीने टू महीने ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है आपको तो इसका मतलब आप राम जी के भरोसे हो। अगर नहीं ट्रैक कर रहे तो आपकी गलती है, आपको ये करनी पड़ेगी, करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आज मैंने आपको सब बता दिया है। दिस इज़ ए फाइनेंशियल वर्कशॉप जहाँ पे मैंने आपको बेसिक फाइनेंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक वे टू मैनेज योर फाइनेंसेस आपको कोशिश करिए एक टाइम के अंदर आपको देने की। एंड थैंक यू SGCCI फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, जिसके वजह से आज मैं आपके पास पहुंच पाया। एंड थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस wonderful opportunity so that everyone can be part of this forum and be part of the change. Thank you. Thank you very much, sir. You have explained and guided us in very simple manner to the participants of business community and professional traders regarding cash flow statement and financial management. Now, may I request to the group chairman of SGCCI, Shailesh Desai, sir, please propose vote of thanks. ऋषभભાઈ કીધું હતું કે ઘણી વસ્તુ આપણને નથી ખબર તે ખબર છે. ઘણી બધી વસ્તુ એવી હતી કે જે ખબર જ નથી ને તે પણ ખબર નહોતી કે આપણને ખબર નથી. આ કેશ ફ્લો કદાચ અહીંયા બેઠેલા ઘણા બધાને એના માટે ઘણી બધી ઇનડેપ્થ નોલેજ મળ્યું હશે. અને આજે એટલીસ્ટ એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ બિઝનેસની અંદર શું કરવાનું છે અને શું નથી કરવાનું એ પણ ઋષભભાઈ અહીંયા આગળ સરસ રીતે આપણને એક્સપ્લેન કર્યું. તો
First of all, let's have a big applause for Rishabh Bhai for having a in-depth knowledge as far as accounting and the business. See, એ તો પોતે બિઝનેસ CA છે, ઇઝ અ પ્રોફેશનલ. એ એકાઉન્ટિંગનું વધારે જાણે છે, બિઝનેસનું પણ એમણે નોલેજ આપ્યું છે કે બિઝનેસમાં શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું, એ મહત્વનું છે. અને એની જોડે જોડે આજે આટલા સરસ રીતે તમે અહીંયા બેઠા છો, તમારા માટે પણ એક તાળી પાડી દો બધા. જોડે અમારો ચેમ્બરનો સ્ટાફ પણ આજે અત્યારે બેઠો છે આ પ્રક્રિયાની અંદર. સો ફોર ધેમ ઓલ્સો થેન્ક યુ વેરી મચ. અને અમારા દીપેશભાઈ શાકવાલા એ આ પ્રોગ્રામના ક્યુરેટર છે અને એમણે આખો પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કરીને અહીંયા આગળ એક્ઝિક્યુટ કરવામાં એમણે જે ફળ આપ્યો છે. થેન્ક યુ દીપેશભાઈ, સો નાઇસ ઓફ યુ. And we call it a day for today and we end up the program. Thank you very much, everybody.